AMCC on bridging solutions, negotiation, mediation, and reconciliation for a stronger banking sector. We'll start the day with a recitation of Holy Quran, and I will request Mr. Kadi to come on the stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Now I would like to invite Mr. Mohammad Isaaq Ali, Advocate, CEO, MIA AMCC. He's former General Secretary for Sindh High Court Bar Association and currently General Secretary for Corporate and Banking Lawyers Association, CBLA. He'll be talking on banking disputes suitable on mediation. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, and honorable judges, bankers and distinguished guests, and esteemed colleagues, Assalamu alaikum. It is both an honor and a privilege to speak with you today about an issue of critical importance to the financial stability and economic growth of our nation. The role of negotiation, mediation, and reconciliation in building a stronger banking sector. The banking sector, as we all know, forms the backbone of our economy. It finances businesses, enable growth, and support individuals in fulfilling their aspirations. However, the sector also faces significant challenges, particularly when it comes to debt recovery and non-performing loans. These challenges not only threaten the health of individual financial institutions, but also the broader economic landscape. In addressing these challenges, traditional legal remedies, litigation and enforcement are often lengthy, costly, and adversarial. They can erode relationships, diminishing trust, and lead to suboptimal financial outcomes. This is where negotiation, mediation, and reconciliation can help in as powerful tools. Negotiation allows parties to reach mutual beneficial agreements, reducing the burden of debt without the need for costly legal battles. It creates room for creativity in structuring debt repayments or finding alternative means to settle disputes. Mediation involves a neutral third party who facilitates constructive dialogues between the financial institution and the borrower. Through mediation, we can help restore communication, rebuild trust, and for win-win situation.
often reducing the amount of non-performing loans that would otherwise need to be written off. Reconciliation is about healing broken relationship between lenders and borrowers. This approach can preserve long-term banking relationship. Even in situation where there has been a breach of trust, reconciliation offers the chance for both parties to move forward, stronger and more resilient than before. NPLs have long been a drain on the resources of banks, drying up capital that could be used for productive lending. Mediation and negotiation can speed up the resolution of these loans, often without the need of expensive legal action. As a law firm, we are ready to partner with you in these efforts. Together, we can build a more resilient banker sector, one that fosters economic growth while maintaining financial stability. Now, I would like to brief some modus operandi of mediation, how we start the mediation and what is the process, and what is the role of mediator. As a mediator, it is our role to facilitate dialogues and negotiations between the parties and to help them arrive at their own solution. It is not our role to act as an arbitrator or judge, nor to provide a solution. Discussing should expand parties' understand and wide possibilities for settlement. Do not limit discussion to legal issues. They are likely to be broader commercial and personal consideration. Mediator always provide the conducive and congenial environment, and they have some phases. First, the mediator adopt the process of preliminary private meeting. Make the parties feel safe in talking to the parties by explaining that they are conversing in confidential, but do not do a full mediator opening. And the mediator try to make them understand for their joint meeting opening. Thereafter, the mediator adopt the joint opening meeting. Take a few moments to settle himself. Introduce yourself and let the parties introduce themselves to each other. Thereafter, the mediator asks for the opening statement and adopt the process of exploration phases. In the exploration phases, he tried to build up rapport with the parties so that they can develop confidence and trust in the parties and the mediation process, and he understand the parties' need and interest, find out what matter to the parties and why, and enable them gain a greater understanding to how each other see things. This will help them move for focusing on the post to finding the common vision for the future. Thereafter, bargaining process will start. Bargaining phase. In this, identify the likely settlement framework, work on a specific term for settlement, and use negotiation skills to help the parties formulate and exchange offer effectively. He also tried to reality test where necessary and appropriate mediation. Thereafter, he concluded the phase and made if settlement has been made between the parties in writing. This is a simple process of mediation, what we have to adopt in this. Thank you. Mr. Fahim Ahmed Siddiqui sir. He was a judge in Sindh High Court. He contributed to the Sindh Judicial Academy as a senior faculty member and was a registrar of the Sindh High Court. He authored several legal books. His commitment to legal education extends to membership on the boards of governors on several prominent universities. He's also a member of ADR board of MIA AMCC
Sir will be making a presentation on the legal framework and the regulatory aspects, overview of relevant laws and regulations in Pakistan governing the mediation. Sir, please. Legal framework of ADR, alternate dispute resolution. Alternate dispute resolution can be done without any legal framework, but in some cases there are certain laws, legislations, which also rules, regulations, which are also helpful. The first one, purpose of the ADR is to resolve dispute, and this is also the purpose of the courts also. One thing more, ADR is possible only in those cases where the parties are under some misconception of their rights. But ADR is completely failed when a party knows well that they are wrong and they entered into the litigation just with intention to drag the other party. Then it is totally failed. It is not possible in such cases. It is the case where the proper adjudication is required to be done. ADR is actually happens outside the traditional court, but nowadays it is also happening in the courts scenario. I will discuss about that later on. And as I have said in the initial that there may be a legal framework, or without legal framework, ADR is very much possible. Without legal framework, just because it is a mediation, try to resolve the dispute, and it is happening for centuries in our society. Then what is the advantage? It will help to keep the litigation under control. The filing of the cases in our judicial system has clogged the entire matter. Judges are helpless. They even sometimes they cannot reach at the end of their docket, that is cause list, just because of the huge pendency of cases. So it will be helpful in this respect. What are the process? First one is arbitration, then mediation, conciliation and negotiation. Arbitration, it was actually done in the early 19th century, perhaps late 18th century, when some legislation was done in UK, England, regarding the arbitration. And when the arbitration law was passed, the legal philosophers were very happy, whose mental baby it was. And the lawyers were lamenting. But what happens after some times? Legal philosophers are those who find out, predict, think about what the law ought to be. And lawyers are those who are interacting what the law is. So, after some times, the lawyers
were laughing and the legal philosophers were lamenting, just because the process of ADR has again clogged the matter. There are so many applications, objections, and litigation was carried out. One again, the matter goes to the court. In our 1940 ADR system, there are plenty of applications which can be filed either before the arbitrator or in the court from where it is, if initiated. Mediation is a process in which the mediator helps the litigating parties or the person who are under dispute to resolve their dispute by themselves. In conciliation, the person, the mediator, whatever the person, conciliator, is more proactive. He is not sitting as just to see that the parties may not fight each other, but he himself is doing something more, and he not only help but suggest the possible outcome or possible ways to resolve the dispute. Then in negotiation, there is no need of any mediator, no need of any conciliator. Parties themselves engaged in discussion and find out some way out. What are the statutory backup? Constitution of Pakistan, Article 146, Sub-Article 3, 152, 159, Sub-Article 4. In all these articles, actually the dispute is between the federation and province, or province, and these disputes can be resolved through mediator appointed by the Honorable Chief Justice of Pakistan. Then Alternate Dispute Resolution Act 2017. It was passed by the federal government and it is limited for Islamabad territory. Punjab Alternate Dispute Resolution Act, Section 89A and Order 10, Rule 1A of the Code of Civil Procedure 1908. It is foreseen, just because in 2019 some drastic amendments have been made in CPC in Sindh only, so it is foreseen. Then small claims and minor offences, Section 10 and 12 of the Family Court Act. Compounding of offences, Section 345 CRPC. Plea bargaining, Section 25 of NAB Ordinance. The Probation of Offenders Ordinance 1960, which is very helpful in this respect, and I like it most. But unfortunately, it is for the sentence of 3 years only when the probation is plays part. And Section 195C of Customs Act and Chapter 17 of the same, of this custom rules. Section 134A of the Income Tax Ordinance and Rule 231C. Section 47A of Sales Tax. Chapter 10 of the Sales Tax Rules. Section 65 of Sales Act. Sales Tax Act. Sorry for that. Rule 49 of the Public Procurement Rule 2004. SBP Circular, State Bank of Pakistan Circular number 1 of 2010, 27 September 2010. And this is the circular. Actually, at that time there was KCDR
And presently, all the mediation centers working throughout Pakistan are actually inspired by KCDR. It was a very successful center for dispute resolution. In this circular, you will find the name of KCDR. But for banking code, this circular can effectively be used by the judges. What is the importance of it? It is cost effective. In so many cases, there is no fee for mediators by different mediation centers, and time efficient. In 2-3 sittings, and sometimes only in one sitting the matter is resolved. Confidentiality, no publication, no case, no news report, nothing has come and matter is resolved. And then relationship preservation. It is the very important thing, even in business, family matters, whatever the thing. And relationship is important. And through mediation, relationship, it is a prime duty of the mediator or conciliator to try to preserve the relationship between the parties. Banking dispute, what is the reason why? Bank deals with complex, sensitive matters where litigation can be detrimental. In some cases, the borrower may come to road. So, it will be helpful. I haven't done any case of banking, only 1 or 2 cases. When I was lawyer, I never be a judge of banking court. But I would like to give an example. In one case, when my client had said that when I was a lawyer, he intends to do some settlement with bank, and please make an offer to bank from my side regarding the settlement. And whatever the offer he has made, I have placed through my letter to the bank, and bank has accepted that. Bank is not intending to spoil its client, but he is interested in getting his money back. And when a venue has come to return the amount, the bank has accepted the same. So, I think there are good chances of mediation and conciliation in banking cases. What is the common dispute? You may see that loan, contractual issues, fraud, allegations. In Labour Appellate Tribunal, a case has come to my knowledge. There is a portion of, you can say, a system in banks that the disputed or suspected money is transferred to a certain category or whatever the thing. A person who was a banker, against him was a charge that he has misappropriated money. But the money was actually transferred to that amount, that head of account. It was not misappropriated. He has not taken that money with him.
A case was registered. He was dragged in banking court, banking offences court, जहाँ के रियो साहब हैं आजकल, and ultimately he was acquitted. And after acquittal, the amount which was by the bank at the time of his retirement or removal from service, the bank has to repay the same with 5 times penalty. So such type of cases also can be handled through mediation instead of putting them in criminal trial. So these are the matters, complexity of the banking cases. What is the role of the lawyer in such cases? They advise their clients for ADR option, prepare case material and position the statements, affidavit, whatever things for the mediator. Guide the interests of their client also. What are the skills for a banking lawyer? Well versed in banking laws and ADR process both. He must have some knowledge of mediation and negotiation skill. Understanding the financial and regulatory implication and ability to simplify the complex issues. Judge's role. Referral to ADR. They have to see which cases can easily be resolved through ADR. It is their role. And they have to supervise and oversight the mediation process. भेज के भूल ना जाएं, फोन करके ये क्या हुआ, कहाँ पहुँचे. Review and approval. When settlement come, they have to review it. Whether the settlement is proper, it is according to law. And then another thing that is med-arb. In such cases, judges work as mediator and arbitrator both. Unfortunately, this practice is not so much highlighted in our scenario or country, but the fact is that judges are doing this job, and not only in banking case, they are doing this job in criminal cases, civil cases, and perhaps it is very easy for judges in rural Sindh areas where the people have the concept of mediation or whatever you can say, panchayat, jirga in their mind. And in such cases, either the judges refer the cases to mediation. Here are so many judges sitting, and first they try to resolve the dispute as a mediator,
as a conciliator, and then when they see that matter cannot be resolved, then they becomes arbitrator or judge and decide the matter. So this function can also be adopted, but it is very tricky and difficult, and so many judges are avoiding to do it. But I know some of the judges in Sindh who are very proactive in this respect, and they have no concern about that. There will be allegations, but some don't do it. No doubt there are the chances of allegation in such practice when a judge is trying to mediate first and then he becomes an arbitrator or judge to decide the case. What are the benefits to lawyers and judges? Efficiency and expertise. Lawyers, as I have said, lawyers ensure that the legal rights of their client should be protected, and judges bring neutrality in the matter. Trust building is another benefit. For lawyers, a satisfied client is more than anything. Just because through a satisfied client, more cases will come and clientele will increase. And then the most important thing is that it will help in reducing the backlog. Backlog, I consider that without the process of ADR, it is very hard to reduce the backlog which we are facing today in some sectors. Thank you very much. Okay. And the regulatory aspect on ADR. Very brief. Now I would like to invite Judge Retired Mr. Shahid Shafi, District and Session Judge, Sindh Judicial Academy Head and Trainer Mediation Program. He'll be speaking on challenges and obstacles to ADR adoption in the banking sector. Please, sir. I work as Judge Banking Court in three different districts, in Karachi, in Larkana, as well as served in Islamabad. And I attempted to bring the parties to that position so that mediate at the initial stage. It was difficult. Just give you a background of my working. Initially, I started to work as judge, magistrate. Then I had an opportunity to join High Court of Sindh, where my work was to conduct research. When I was doing some research, I proposed an amendment in law. I thought that I should propose an amendment in law that was in respect of service of summon. एक बहुत पुराना सा तरीक़ाकार था, that was ढोल बजाओ और लोगों को बताओ कि तुम पे ये litigation हो गई है. So I thought it is a new era of technology, and this ढोल बजाओ is old philosophy. मैंने कहा कि इसको हटा देना चाहिए. फिर किसी वजह से I could not place that idea in my proposal, छोड़ दिया. I became the judge of banking court at Larkana. वहाँ एक साइन थे, उनकी 3 मरतबा पब्लिकेशन हो चुकी थी, कोई उनकी फैक्ट्री ख़रीदने नहीं आता था, और वो ये सबको ये कहते थे कि मेरी फैक्ट्री कौन ख़रीदेगा. So I recall that process of service. I directed to my process server, go with dhol
और जाओ बजाओ साईं सरदार फलाने के खिलाफ केस नंबर ये इतने लाख रुपए। अभी वो सिर्फ और सिर्फ 2 फरलांग चला था उस ढोल के साथ। उसको पकड़ा गया, बेलिफ को कहा तू इधर आ जा। सुबह साईं मेरे पास थे और मुझे कहा बैंकर को बुला ले, ADR शुरू। सो द मोड ऑफ सर्विस जिसे मैं कहता था इट इज़ एन आउटडेटेड अप्रोच, तो वो मुझे यूज़ हुई, मैंने यूज़ किया एज टूल टू ब्रिंग द पार्टीज ऑन द टेबल, पर्टिकुलरली वन हु वाज इन द पोजीशन। और कोई नहीं खरीदता था। 3 अखबार हो गए थे। मैं अखबार में भेजने से पहले मैंने कहा नहीं, अखबार में तो फिर भेजेंगे तो कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। कराची का एक अलग मिजाज था। यहाँ पे मेडिएशन के लिए कैसे लेके आऊँ? एग्जीक्यूशन हुई तो एग्जीक्यूशन के अंदर बैंकर से बात की, देखो भाई 5,000 रुपये is the fee of Nazir and he is going to be appointed and he will inspect the place which is going to be sold, auctioned। उस जगह को जाके देख के आएगा। अभी अखबार में सेल के लिए भेज ही नहीं रहे। अखबार का वो 20,000 का 25,000 का नुकसान अभी शुरू ही नहीं हुआ। नाजिर जाता था 4 आदमियों के साथ, दरवाज़ा खटखटाता था, जी क्या हुआ? मैं इस घर में रहता हूँ। जनाब घर में तो रहते हैं, ये है अखबार में इश्तिहार हम देने लगे हैं, इसे बेचना है। मैं नाजिर हूँ, जज साहब ने ये मुकर्रर किया, देख के आओ कि घर की पोजीशन क्या है, ताकि वह वर्थ मुझे तो पहले तो बेचूंगा तो बाद में, पहले तो मुझे वर्थ को तय करना है कि 2 मिलियन के 5 मिलियन के 20 मिलियन है कितने का। सो मैंने वो वर्थ को एवेल्यूएट करने का तरीक़ाकार किया कि एक इंस्पेक्शन नोट आ जाए कि कंस्ट्रक्शन कितनी पुरानी, कितने कमरे, कैसी कंस्ट्रक्शन, ताकि हम उसकी वैल्यू को करें। वो भी बस वैल्यू तो क्या ही होती थी, दूसरी तरफ एक थ्रेट ही होती थी और एक मोटिवेशन, किसी तरीके से कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस होते थे। कम एंड सिट विद द बैंकर एंड स्टार्ट टॉकिंग। कुछ भी है, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन इसको एक तरह से डिज़ोल्व करें। वरना CPC के जिस ऑर्डर को मैं हैंडल करता था एग्जीक्यूशन, 102 रूल थे उसके। 102 रूल जो है ना, एक अच्छा वकील कम से कम 200 तारीखें तो ले सकता है। सो 1-2 ऑप्शन ये थे जो हमने अप्लाई किया। और इशू है कि पार्टीज इसमें आई कैसे। मैं जनाब से भी, इसाक साहब से भी कह रहा था कि इनिशियल जब आप लोग ये सोचते हैं कि इस कंपनी को 5 केस दे दिए जाएं, उसको 10 केस दे दिए जाएं, सो इंस्टेड ऑफ रेफरिंग केसेस, असाइनिंग केसेस, वी मे मेक अनदर अटेम्प्ट। आप केसेस भेजने से पहले क्यों ना टू अप्रोच अ मेडिएशन सेंटर। मेडिएशन सेंटर शाहिद शफीक, मेडिएशन सेंटर इसहाक साहब, मेडिएशन सेंटर अहमद साहब, मेडिएशन सेंटर कोई सा भी, किसी भी मेडिएशन सेंटर, किसी पे यकीन नहीं है, मेडिएशन सेंटर कोर्ट अनेक्स मेडिएशन सेंटर हाई कोर्ट, उसको क्यों ना हम एक एप्लीकेशन दे दें कि मैटर मे बी रिजॉल्व थ्रू मेडिएशन और हमारी ये दूसरी पार्टी है, इसके साथ बैठ के कर लें। अच्छा, अब इसको लेजिस्लेटिव बैकअप है कि नहीं है? हम स्पेशल लॉ के अंदर स्पेशल लॉ में घूम रहे हैं। 23 ऑर्डर 23 रूल 3 की एक एप्लीकेशन बाद में कंप्रोमाइज़ की देते हैं, तो सेक्शन 89B एग्जिस्ट करता है। सेक्शन 89B ये कहता है कि विदाउट अप्रोचिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ द 2 parties may approach to the mediator and get resolved the dispute, and once it is resolved the amicable settlement may be brought before the court will endorse it and the judgment and decree will be passed. Section 89B, it was amended in 2018। तो हम उसको कहीं पे ले कोशिश अगर करें कि उस 289B की फ़िलासफ़ी को कहीं इस्तेमाल करें। एक तरीक़ाकार ये भी हो सकता है कि बैंक इन हाउस ही मेडिएशन के लिए बुलाएं। नॉर्मली पार्टीज रिस्पॉन्ड नहीं करती, इसलिए मैंने कहा कि किसी ABCDEF सेंटर में चले जाएं। हम देख रहे थे इसहाक साहब का
के पास एक जगह है, हम किसी और जगह पे भी देख सकते हैं। इस वक्त 3, 4, 5 मेरे ख्याल में मेडिसिन सेंटर्स हैं, जहाँ पे भी चले किसी को भी कह दें। आई बिलीव कि मैं इसाक साहब के बिहाफ पे जुर्रत करके ये कह रहा हूँ कि अगर इसाक साहब के मेडिसिन सेंटर में कोई भी बैंकर आके ये कहता है कि इसाक साहब मेरे केस को मेडिएशन कर दीजिए एंड राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू पे, हम कुछ अल्टीमेटली कुछ रिजॉल्व हो जाएगा तो हम कर देंगे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, नाकाम हो जाएगा तो ज़ीरो पे चले जाए भले, लेकिन कम से कम हम एक इनिशिएट तो करें, इस प्रैक्टिस को लेके तो आए। अच्छा, कुछ फरीकैन ऐसे होते हैं जिन्हें स्टेट के ऊपर ही थोड़ा सा ट्रस्ट होता है, पर्टिकुलरली जुडिशियल सिस्टम पे लोग थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं हम जुडिशियल फोरम पे जाएं। सो कोर्ट अनेक्स मेडिसिन सेंटर हैज़ बीन एस्टैब्लिश विद इन द प्रीमिसेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सिंध. So the parties may approach to them as well. The banker may make an application to the mediator who is sitting in the high court. The high court की तरफ से जब एक नोटिस जाएगा पार्टी बी को कि बैंक ए एंड बी बैंक हैज़ फाइल्ड एन एप्लीकेशन एंड रिक्वेस्टिंग दैट के इस मामले को रिजॉल्व कर लेते हैं, तो वहाँ पे हम रिजॉल्व करने का एक ऑप्शन हो सकता है। मैं नहीं समझता कि 100% केसेस रिजॉल्व हो जाएंगे या 50% हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ अगर 25% भी केसेस का रिजॉल्व होना उस ऑप्शन से होता है तो हम इंस्टीट्यूशंस के कितने पैसे बचाएंगे, हम कितना टाइम बचाएंगे। तो कहीं उस मैकेनिज़्म पे हमें सोचने की ज़रूरत है। बैंकिंग कोर्ट में जो स्पेशल लॉ है वो मुझे स्पेसिफिकली नहीं कहता था कि केस रेफ़र करो या केस को मेडिएशन के ज़रिए रिजॉल्व करो, रोकता कहाँ है? नहीं रोकता। दैट इज़ वाई यू कम बिफोर द जज एंड से वी हैव सेटल्ड द डिस्प्यूट, नाउ गोइंग टू विथड्रॉ, और दीज आर आवर टर्म्स एंड कंडीशन, द केस मे बी डिस्पोज्ड ऑफ इन टर्म्स ऑफ द कंप्रोमाइज। तो वो भी डिग्री हम कर देते हैं। तो रोका तो नहीं है कि कंप्रोमाइज़ ना करो, तो हम ज़रा सा इसको स्ट्रक्चर्ड कर लेते हैं और हमारे पास बैकिंग है। जब सीपीसी का सेक्शन 89B ये बन रहा था या इसको आर्टिकुलेट किया जा रहा था तो मैं उस कमेटी का मैं भी मेंबर था। हमने डेलिब्रेटली एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, सिविल एंड कमर्शियल। तो मैं क्योंकि बैंकिंग कोर्ट से गुजार चुका था तो मैं कहीं पे सीपीसी में कमर्शियल के लफ्ज़ को इस्तेमाल ऐड करवाया था ताकि कमर्शियल लिटिगेशन जिनकी है अगर वो इसको आना चाहें तो उसे अवील कर सकते हैं। तो कुछ रास्ते ढूंढने की ज़रूरत है। मैं तो बैंक की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो साइन करने से पहले एक अटैम्प्ट करने में तो कोई हर्ज नहीं है। इसाक साहब का सेंटर है, इंडिविजुअल्स मेडिएटर्स हैं, इंडिविजुअल मेडिएटर्स हैं। मैंने और जावेद कीरियो साहब ने हमने इटली से मेडिएशन की ट्रेनिंग ली, हम मेडिएटर हैं। मैंने सिंध जुडिशल एकेडमी में कोर्ट अनेक्स मेडिएशन सेंटर पहले जिन सिंध जुडिशल एकेडमी में था, वी रिसीव नंबर ऑफ केसेस नॉट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर बट सिविल लिटिगेशन हमें बहुत आई, रेफ़र होके आई, और मैंने बेशुमार केसेस डिस्पोज ऑफ किए और सक्सेसफुल हुए। बहुत सारे नाकाम भी हुए लेकिन सक्सेसफुल भी बहुत सारे हुए। कमर्शियल लिटिगेशन जितनी सक्सेसफुल हुई है वो उसकी रेशो ज़्यादा थी। तो हमें कहीं ऑप्ट करने पे इंडिविजुअल्स के पास जाने में और उनके पास किसी सिस्टम के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं कम से कम 2 आदमियों के बारे में तो ये कहूँगा, एक इसाक साहब है और एक खुद शाहिद शफीक साहब है, कि अगर कोई भी मैटर बैंक की तरफ से हमें रेफ़र होगा तो हम ना पहले चार्ज करेंगे ना बाद में चार्ज करेंगे। देखेंगे जब कभी चार्ज करने वाला वक्त आएगा तो कम से कम हम इसे इनिशिएट तो करें, मार्क्स तो हो, हम एक अटैम्प्ट तो करें। लोगों के जहन में तो आए कि इंस्टेड ऑफ 10 years अ मैटर मे बी रिजॉल्व इन अ मंथ और 2। कोई उस विजडम को हम इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश तो करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for giving us a brief on the challenges and obstacles to ADR.
Now I would like to invite Judge Banking Court, Mr. Javed Ahmed Kirio. He has 30 years of experience in the judiciary. His expertise are in complex appeals and high-profile cases. He has participated in training programs in ADR and judicial and environmental law. Currently, he is a presiding officer for the Special Court in Karachi. He handles financial crimes and banking disputes. He'll be talking on the best practices in mediation and conciliation and the benefits and culture in banking disputes. Please, sir. जो कुछ मैंने कहना था वो हमारे मोहतरम उस्ताद मोहतरम फ़हीम अहमद सिद्दीकी साहब कह गए। उसके बाद जो कुछ थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो शाहिद शफीक साहब ने पूरी कर दी। तो जो कुछ मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ इसको तो एज एन एक्शर्स ले लिया जाए तो बेहतर है, बजाय इसके कि मेरी अपनी कोई प्रेजेंटेशन हो। तो हमारे पास जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मीडिएशन कंसिलिएशन जो है वो बैंकिंग डिस्प्यूट्स में बहुत ज़्यादा, शाहिद साहब ने कहा कि कमर्शियल डिस्प्यूट होता है और इस कमर्शियल डिस्प्यूट में बहुत ज़्यादा आसानी है कि पार्टीज़ जो है वो एक दूसरे से रब्ता करें, एक दूसरे से बात करें और अपने मैटर को रिजॉल्व कर लें। इसमें कोई ख़ानदानी दुश्मनियाँ नहीं है, इसमें कोई और मसले नहीं होते। किसी आदमी की पार्टी का ईगो का भी मसला होता है तो हमारा जो मीडिएटर होता है उसको बहुत आसानी उसको डील कर लेता है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस हो क्या सकती हैं, कि जो हम अभी इसमें देखने जाएंगे वो देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द मीडिएशन बैंकिंग डिस्प्यूट्स क्या होगा, कंपैरिजन विद दी अदर एडीआर जैसे फ़हीम साहब ने पहले भी बता दिया, कंसर्न्स अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी है, बेनिफिट्स ऑफ मीडिएशन एंड कंसिलिएशन है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मीडिएशन एंड कंसिलिएशन एंड फॉस्टरिंग इन मीडिएशन फ्रेंडली कल्चर है। उसके बाद हम कंक्लूजन देंगे इसका। तो इसके अंदर जो एक चीज़ है कि मीडिएशन है क्या, एक्चुअल में दो पार्टीज़ के दरमियान इन बैंकिंग डिस्प्यूट्स अगर कोई मीडिएशन आती है तो इसके अंदर जो हमें देखना होता है कि मीडिएशन इज़ अ वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस हैविंग ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी। इसमें जैसे शाहिद साहब ने भी ऑफ़र किया और साथ साइमल्टेनियसली इसाक साहब के लिए कह दिया कि इसाक साहब भी आएंगे और इसाक साहब जो है वो अपनी मीडिएशन सर्विसेज को जो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, शाहिद साहब भी देंगे। फ़ीस की बात भी वैसे उन्होंने रखी, मुझे खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि आखिर में देखा जाएगा कि अगर फ़ीस देनी होगी तो हम ले लेंगे। तो शाहिद साहब ने ये एक जी सर जब आपका नाम गुडविल हो जाए। उसके बाद एक इन बैंकिंग डिस्प्यूट्स बहुत ही आसानी है। बैंकिंग डिस्प्यूट्स हैं जैसे मैंने पहले कहा कि ये रेलेवेंट है बिकॉज इट प्रिजर्व्स कमर्शियल रिलेशनशिप। एक बैंकर का अपने क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। आप अगर लड़ने जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, वकीलों के ज़रिए जो है वहाँ पर लड़ाइयाँ होंगी तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो जो रिलेशनशिप है वो सबसे पहले जो ख़राब होगा मेरे रिलेशन ख़राब होंगे। सो मच सो कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए कहती है या अपने वकील के लिए कहती है कि मेरा वकील जो है वो दूसरी पार्टी से मिल गया है। सबसे ज़्यादा एलिगेशन जो आते हैं वो ये आते हैं कि मेरा वकील जो दूसरी पार्टी पे कैसे मिल गया, कि सर वो उसके वकील के साथ बैठ के बार में चाय पी रहा था। अब वो समझते हैं कि शायद हमारा केस है तो हमारी पार्टीज़ जो हैं वो आपस में इतनी ज़्यादा हो जाए कि उनके वकील भी आपस में एक दूसरे के से बात ना करें। इसमें इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन मीडिएशन बाय बैंक्स टू मैनेज कन्फ्लिक्ट विदाउट लिटिगेशन, इम्प्रूविंग कॉस्ट एफिशिएंसी एंड क्लाइंट सेटिस्फैक्शन ऑलरेडी हैज़ बीन स्पोकन बाय बोथ माय सीनियर्स ओवर हेयर। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर की एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं कि फॉर इंस्टेंस बैंक्स ऑफन face disputes related loan defaults or contractual disagreements where mediation offer a way to resolve issues without cost publication। पब्लिक लिटिगेशन से जो जितनी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है और रिलेशनशिप ख़राब होती है, उससे बेहतर है कि दो पार्टीज़ आपस में एक बड़े को मिला के और बड़ा जो है वो हमारा मीडिएटर हो जाएगा, सर्टिफाइड मीडिएटर हो जाएगा और वो अपना रोल प्ले करेगा, एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा और जो है वो मीडिएशन करवा लेगा। अभी जैसे फ़हीम साहब अर्ज़ कर रहे थे कि हमारे बहुत सारे जजेस ने और शाहिद साहब ने वेट किया कि बहुत सारे जजेस ने जो है वो मीडिएशन करवाई है। अच्छा, जब हम मीडिएशन की ट्रेनिंग हमारे जज साहबान को दे रहे थे यहाँ सिंध जुडिशल अकेडमी में, जो हमें सबसे ज़्यादा दुश्वारी आ रही थी वो आ रही थी कि जज का जो कैप है ना, उसका जो एज अ जज जो वो रोल अदा कर रहा है गुज़िश्ता 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से, उसको उस कैपेसिटी से बाहर निकालना, जज की कैपेसिटी से बाहर निकालना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो शुरू के 2 दिन और 3 दिन हमारे सिर्फ इसी बात पे लगते थे कि हम एक जज को
एक मीडिएटर बनाने के लिए उसके उस जज वाले रोल से बाहर निकालते हैं. दो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट टू रिमूव दैट वेरी कैप इट वाज वेरी एसेंशियल फॉर अ मीडिएटर, अ सक्सेसफुल मीडिएटर, बिकॉज जज की तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरी हैं. जज का तो काम है कि वो डायरेक्शन देता है, जज का काम है सजेशन कर सकता है, जज का काम है वो ऑर्डर कर सकता है. मीडिएटर का काम ही नहीं है. मीडिएटर तो बैठ के फैसिलिटेट करेगा पार्टीज को टू ब्रिंग टू सम. ये डिस्प्यूट जो डिसॉल्व होगा मीडिएटर के जरिए वो पार्टीज का अपना डिस्प्यूट होगा, जिसको इन्होंने इसाक साहब ने सही कहा कि विन विन सिचुएशन है दोनों पार्टीज के लिए, कि दोनों पार्टीज खुश होकर जाएंगी क्योंकि इनका डिस्प्यूट आपस में रिजॉल्व हो जाएगा. तो न सिर्फ ये कि बैंकर्स बल्कि हमारे जो लिटिगेंट्स हैं उनके हक में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. एग्जाम्पल है फॉर इंस्टेंस बैंक्स ऑफन फेस डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू, ये हम बात कर चुके. अदर ADR मैकेनिज्म फ़हीम साहब इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो हम इसके अंदर देखते हैं, पहले आर्बिट्रेशन था, 1940 का लॉ है, और अगर कोई क्लॉज है आपके एग्रीमेंट के अंदर कि पहले हम आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे तो सबसे बेहतर है. लेकिन जो आजकल एक नई चीज़ है वो ये है कि अगर हमारे बैंक्स किसी पार्टी से एग्रीमेंट करते हुए उसके अंदर मेडिएशन क्लॉज डाल दें, इंस्टेड ऑफ एडिशन आर्बिट्रेशन क्लॉज मेडिएशन क्लॉज डाल दें, तो वो भी बाइंडिंग हो सकती है. तो बैंकर्स के लिए बेहतर है कि हम मेडिएशन क्लॉजेस को उसके अंदर इंसर्ट कर दें अपने उसके अंदर. लिटिगेशन आपको पता है हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा, एक आप सिटी कोर्ट के माहौल से या हमारे बैंकिंग कोर्ट के माहौल से अगर कोई यहाँ से गुजर के जाता हो और एज़ कम्पेयर टू दी मेडिएशन सेंटर अगर कोई जाए तो उसे अंदाज़ा होगा कि क्या फ़र्क है कि वहाँ जाने में और यहाँ जाने में. वहाँ लाइन में लगना पड़ता है, वहाँ टाइम बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, वहाँ जज साहब का इंतज़ार करना पड़ता है. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. आपको गेट पे लेने के लिए मीडिएटर आता है, आपको इज्जत से लेके जाता है, एक कमरे में बिठाता है, चाय ऑफ़र करता है, टीवी दिखाता है, वहाँ सेंटर सारी चीज़ें लगी होती हैं, अखबार पढ़ा होता है, और उसके बाद वो दूसरी पार्टीज़ को बुलाता है. दोनों पार्टीज़ को जो है वो एक ओपनिंग स्टेटमेंट करवाएगा. ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद दोनों पार्टीज़ जो है अपना मुद्दा उसके सामने बयान करती हैं. फिर उनको अलग अलग कमरों में बैठ के उनके साथ कॉन्फिडेंशियल एक जो है वो इन्वायरमेंट में बात करेगा. ये इंश्योर कर देगा, उन पार्टीज़ को बता देगा कि आप जो बात आप मुझे बता रहे हैं ये बात मैंने जाके दूसरी पार्टी से नहीं बतानी जब तक कि आप मुझे परमिशन नहीं देंगे. सपोज़ मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, मेरा डिस्प्यूट है, मैं बैंक कर रहा हूँ, मैंने कहा चलें ठीक है, ये अगर मुझे 5 करोड़ की जगह पर ये 4.5 करोड़ रुपए दे दे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, 4 करोड़ भी दे दे तो मैं ठीक है, मैं जो हूँ अपने उससे डिस्प्यूट से जो अपने मेरा क्लेम है मैं उससे वो कर जाऊँगा. लेकिन अभी आप उसे मत बताइएगा, देखें वो कितने ऑफ़र करता है. तो सेम इज़ द केस विद द अदर साइड के वो 3 करोड़ रुपये ऑफ़र करती है. लेकिन दोनों जो ये प्रपोजल हैं वो मीडिएटर ने अपने पास रखे हुए, वो उसने किसी को बताने नहीं है. वो जब तक कि दोनों पार्टीज खुद किसी एक फिगर पे एग्री ना हो जाए और फिर उस बाद मीडिएटर ने. तो मीडिएशन का काम मुझे इतना खूबसूरत लगा, तो मैं सोचता काश कि मैं जज बनने के बजाय मीडिएटर बना हुआ होता और ये कंसेप्ट जो है वो आज से 25-30 साल पहले भी आया हुआ होता तो बहुत आसानी हो जाती. मीडिएशन जो है वो इनफॉर्मल होती है, नॉन बाइंडिंग है, फ्लेक्सिबल है, फास्टर है, कितने दिन के अंदर मीडिएशन का फैसला हो जाता है. मैंने नहीं देखा, आजकल हमारे कोर्ट एंड नेक्स्ट मीडिएशन सेंटर है हाई कोर्ट में, वहाँ पर हमारे 2 जजेज़ हैं जिनको हम ही ने वहाँ से ट्रेंड किया था जुडिशल अकेडमी से. उन्हीं के नाम हमने सजेस्ट किए कि लोगों को वो बना दें, और उनका जो सक्सेस रेशो है वो माशाल्लाह हमें देख के खुशी होती है कि ये वो चीज़ है जो हमें फल दे रही है उस चीज़ का जिसका कि हमने मेहनत की थी. तो 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन इसमें डेट होने का तस्वुर नहीं है कि डेट हो रही है, चलें भाई आज डेट है, आज इशूज़ फ्रेम होंगे, रिटर्न स्टेटमेंट आ रहा है, प्लान फाइल हो रही है, बहुत सारी चीज़. इन सारी चीज़ों से बचते बचाते हुए एक ही दिन के अंदर अच्छा वो डिस्प्यूट भी जो आपके लिटिगेशन का हिस्सा नहीं है, बाकी डिस्प्यूट भी जो है वो मेडिएशन के ज़रिए हल हो सकते हैं. न सिर्फ ये कि सिर्फ एक केस हो सकता है कि आपके दीगर मसले भी हों उसी क्लाइंट के साथ, और उन मसलों में भी कोई हर्डल आ रही हो और वो केस अभी कोर्ट का जो है वो हिस्सा ना बना हो, किसी लिटिगेशन का हिस्सा ना बनाओ. इवन दोज डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व बाय अ मीडिएटर. अ डिस्प्यूट बिटवीन अ बैंक एंड अ कॉर्पोरेट क्लाइंट. अब इसके की एग्जाम्पल है, कॉर्पोरेट क्लाइंट ऑन इंटरेस्ट रेट वाज रिजॉल्व बाय अ मीडिएशन विद इन 3 वीक्स कंपेयर टू दी 6 months और दी मंथ्स टुगेदर, जिसका हमारे यहाँ वो हो जाता है. कंज्यूमर्स और प्राइवेसी इन मीडिएशन. मीडिएशन के अंदर जो सबसे बड़ा वो है कि इसका मीडिया ट्रायल नहीं है. सपोज एक बहुत बड़ा कोई जो सनतकार है, बैंक ने उसके खिलाफ केस कर दिया, मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, और उस मीडिया ट्रायल के बाद जो है वो आपको पता है कि हालात किस कदर ख़राब हो जाते हैं, बात जो है कितनी बिगड़ जाती है. तो इसमें के अंदर प्राइवेसी है. प्राइवेसी इस हद तक है कि एक पार्टी की बात जो मीडिएटर को पता चली वो दूसरी पार्टी को बताने का उस वक्त तक अख्तियार नहीं रखता जब तक कि वो पार्टी जिसने वो बात बताई है उसको वो बात जाके आगे बता दे. तो इसके अंदर प्राइवेसी जो मेन कंसर्न है, पार्टीज़ को इत्मीनान रखना चाहिए कि हमारी चीज़ें, हमारे जो हम कह रहे हैं वो बाहर नहीं जाएंगी. और आपको पता है कि ये सारी चीज़ें के ये मेजर्स हैं, लाइक ये सब हमारे मोहतरम उस्ताद साहब ने जो है वो असाज़ा साहिबान ने जो है वो पहले से बता दी है.
मैं तो इसको सिर्फ आपको जो है वो अच्छे से तरीके से करके दिखा रहा हूँ कि बाकी और कुछ नहीं। इन अ हाई प्रोफाइल बैंकिंग डिस्प्यूट ओवर अ कॉर्पोरेट लॉन कॉन्फिडेंशियली हेल्प बोथ पार्टीज रीच ए सेटलमेंट विदाउट नेगेटिव प्रेस कवरेज प्रिजर्विंग रिपूटेशन वगैरह, वो सारी रिपूटेशन वगैरह प्रिजर्व हो जाती है। एक क्लाइंट का जो है वो होता है कि मैं कहीं बदनाम ना हो जाऊँ, आगे कोई बैंक मुझे लोन देगा नहीं, कोई मुझसे डील करेगा नहीं। अगर मैं एक एज अ बैंकर या मैं एज अ बिजनेसमैन, मेरा नाम जो है वो मीडिया पे चल रहा हो, मेरा नाम लोग लिए जा रहे हो कि इसने तो ये लोन नहीं दिया, इसने ये नहीं दिया, तो मेरा आगे का बिजनेस कितना मेरा मुतासर होगा। पीपल विल नॉट स्टार्ट दे विल स्टार्ट लूजिंग द ट्रस्ट अपॉन मी। सो एज अ बिजनेसमैन मेरे लिए भी ज़रूरी है कि मैं इस सिलसिले में इसको जो है अडॉप्ट करूँ। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, पैसे नहीं लग रहे हैं अभी तक तो, सो फार एज आई नो अभी तक बहुत ज़्यादा फीसें इसके अंदर चार्ज नहीं हुई हैं। प्राइवेट मीडिएशन के शाहिद साहब बता रहे थे कि हाई कोर्ट ने जो भी सर्टिफाइड किए हैं मीडिएटर, 95 मीडिएटर्स हैं कराची के अंदर और सिंध के अंदर, 95 मीडिएटर्स को एक्रीडेटेड मीडिएशन और सर्टिफाइड मीडिएटर करार दे दिया है उन्होंने। और उसमें 2-4-6 सेंटर्स भी हैं, मतलब इंडिविजुअल मीडिएशन के अलावा 2-4-6 सेंटर्स भी हैं जिनको उन्होंने मीडिएटर का जो है वो सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप मीडिएशन के अपने जो केसेस हैं, लिटिगेशन है, उसको कन्वर्ट करके मीडिएशन में उनके पास ले जाया जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो गई, सारी चीज़ें हो गई। हमारे सर पहले बता चुके हैं, मैंने आपसे पहले कहा कि एज एन एनेक्जर टू दी वट एवर हैव बीन स्पोकन बाय माई बोथ दी लर्नड कोलीग्स और हमारे जो मेंटोर्स हैं इनके लिए, तो उन्होंने पहले कहा था। A major banking dispute over terms of a syndicate loan was resolved through a mediation, solving parties 20% of the estimated legal cost. सिर्फ 20% के ऊपर जो वो सारे काम उनका हो गया था। Same is the case with the best practices in mediation conciliation में जो चीज़ है वो है best practices in mediation, active listening है, neutrality है, confidentiality है, problem solving, फोकस है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो एक मीडिएटर की खासा होती हैं। उसको हम मीडिएटर का सर्टिफिकेट ही नहीं देते। हमारी जितनी भी एसोसिएशन है, अभी बड़ी खुशी की बात है इसाक साहब जो है वो एक मीडिएशन का प्रोसेस यहाँ पे करवा रहे हैं, IMI वालों को बुलवा रहे हैं। और जो काम हम बाहर से जो है वो 25-25, 30-30 लाख रुपए में लोग कर आते हैं, वो यहाँ पर जो है शायद बहुत कम पैसों में वो यहाँ पर इसाक साहब की ऑफ़र है। मैं तो कहता हूँ कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए है कि यहाँ पर एक्रीडेटेड मीडिएशन IMI वाले उसको देने को तैयार हैं और वो यहाँ आकर जो है वो हमें दे रहे हैं, जिसके लिए हमें बाहर मुल्कों में सफ़र करना पड़ता है। तो अगर हमारे लोग जो है इससे फ़ायदा उठाना चाहते हो तो वो भी उठाया जा सकता है। ये भी एग्जांपल्स हैं। वन ऑफ द एग्जांपल है डिस्प्यूट अबाउट लोन रीस्ट्रक्चरिंग, जो है वो दोनों पार्टी से नेगोशिएट किया और उसको बहुत जल्दी इसको रिजॉल्व कर दिया था। इसके बाद फॉस्टरिंग है, जल्दी है हो जाता है। इसके अंदर कोई बैंकों को भी जो है वो लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन से बचने के लिए इसको जो है वो ऑप्ट करना चाहिए। और मीडिएशन स्टेप्स में जो है वो प्रोमोट ADR है, लिटिगेशन को जो है वो हमने अवॉइड करना है या इसको कम से कम कोशिश करने की लिटिगेशन में, अनलेस के मीडिएटर्स के साथ भी बात ना बने और एक पार्टी जो है वो मैंडेट लेकर आ जाए कि नहीं मैंने तो इसको कोर्ट में रगड़े दिलवाने हैं, तो उस वक्त तक तो उससे बेहतर अगर तो ये मैंडेट लेकर आया तो फिर तो आपको किसी न किसी सूरत में कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा और कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो मीडिएटर इज़ अ बेस्ट सोल्यूशन। ये हमारा कंक्लूजन है जो वट एवर हैज़ बीन स्पोकन ओवर हियर। अब थोड़ा सा कंसर्न्स ऑफ द एडवोकेट्स पे कर लेंगे बात, प्लीज़ उसको लगाइएगा। दूसरी नेक्स्ट हमारी स्लाइड थी कि इसके अंदर जो है इवन माई सन टुडे व्हेन ही वाज आस्किंग मी, वो वकील है, मुझे कहते बाबा कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा यार एक सेमिनार में जा रहा हूँ। तो ही हैड सम अदर एंगेजमेंट, अदरवाइज आई वुड हैव ब्रॉट ओवर हिम। तो मुझसे कहा कि बाबा कौन सा, मैंने कहा यार मेडिएशन का। कहने बाबा ये मेडिएशन आजकल सारे लोग कर रहे हैं, तो ये वकीलों के हम वकीलों की फीस नहीं मारी जाएगी। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप ज़रा अगर मेरे साथ टाइम मिल जाए तो बैठ जाओ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर वकीलों का कोई भी ऐसा नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा पैसे मिलने की काफ़ी उम्मीद है। अब इसको देखते हैं कि इसमें एडवोकेट्स का जो है वो लीगल उनका कंसर्न क्या हो सकता है। वो उनका कंसर्न ये होगा, वो कहेंगे कि जनाब बात ये है कि ये सारा हमारा जो कंटेंट्स हैं इसके द शिफ्ट टूवर्ड मीडिएशन और लीगल प्रैक्टिस। अब इसके अंदर जो है द शिफ्ट टूवर्ड्स मीडिएशन एंड लीगल प्रैक्टिस में क्या होता है कि मीडिएशन इज द गेनिंग पॉपुलरिटी फॉर इट्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब आजकल तो हर जगह मेडिएशन की बातें हो रही हैं। मैं शायद ही किसी ऐसे सेमिनार या उसमें गया हूँ जिसमें कोई मेडिएशन की बात ना हुई हो।
हर जगह मीडिएशन का जो है वो हमारे हाई कोर्ट भी प्रमोट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के सेवरल जजमेंट्स हैं। अभी पिछले दिनों एक कराची के अंदर बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तमाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, दुनिया भर से लोग आए हुए थे और हमारे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जो डिसीजंस हैं मीडिएशन के ऊपर, उसके ऊपर जिक्र हुआ था, उस पर बात हुई थी, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा सराहा था, अप्रिशिएट किया था। तो जो हमारे पास मीडिएशन का प्रोसेस है वो अब इसको शिफ्ट होना है वन डे और द अदर। मैं इसका जो स्कोप देखता हूँ, ये देखता हूँ कि शायद हम होना हो, लेकिन एक दिन ये आएगा कि ये मीडिएशन ही मीडिएशन यहाँ पर हो रही होगी। हमें, मुझे और शाही साहब को जो है वो इस्तांबुल जाना हुआ और हमने वहाँ का वो सिस्टम देखा कि मीडिएशन वहाँ पर काम कैसे कर रहा है। तो इस्तांबुल में हमने ये देखा कि वहाँ पर जितने भी ट्रेड डिस्प्यूट थे, जितने भी लेबर कोड के डिस्प्यूट थे, वो सारे के सारे जो है मीडिएटर के पास जाते हैं, उधर बाइंडिंग है। और वो हमने मीडिएशन सेंटर का दौरा किया टू स्टडी कि वो काम कैसे होता है। तो हमें हुआ कि ये बहुत सारे उनके डिस्प्यूट जो हैं वो 80% और 90% उनकी जो है वो सक्सेस रेशो था उसके अंदर, बिकॉज इट वॉज बाइंडिंग एज इट हैज़ बीन मेड बाइंडिंग अंडर सेक्शन 89A एंड 89B। 89A के अंदर सिंध के अमेंडमेंट तो यह है कि चाहे वो कंसर्न दे ना दे पार्टी, कोर्ट जो है वो उसको मीडिएटर के पास भेजेगी, विच प्रैक्टिस इज नॉट यूज, आजकल यूज़ में नहीं। हमने अपने जजेस को समझाने की कोशिश की ट्रेनिंग के जरिए कि आप केसेस को भेजिए, केसेस को खैर भेजा नहीं जा रहा, लेकिन ये कि ऐसा ऐसा टाइम आएगा जब हम मीडिएशन सेंटर ज़्यादा हो जाएंगे, मीडिएटर ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस प्रैक्टिस को भी हम फॉलो कर लेंगे। अब ये जो हमारा रोल है इसमें मीडिएशन में हमारे वकील साहब का, वो आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। और आपकी पार्टी जो है एडवोकेट कैन ऑफर कंसल्टेशन फ़ी, सर्विसेज फ़ी अपनी, कि मैं ठीक है तो मीडिएशन के लिए जा रहे हो, तुम्हारे एग्रीमेंट में भी अगर मीडिएशन की क्लॉज है, अगर जा रहे हो तो ठीक है, एंड यू हैव एंगेज मी, तो आपको लीगल एडवाइस के लिए, आपको आपके पार्टीज़ को रिस्क असेसमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए जो है वो असेस कर सकता है वकील जो है। दिस इन्वॉल्व एनालाइजिंग केस स्ट्रेंथ्स, केस के स्ट्रेंथ भी दिखाएगा, बताएगा कितनी वीकनेस है, कितनी आप सेटलमेंट के अंदर जाओगे तो यहाँ पर फ़ायदा है, यहाँ पर नुकसान है। पार्टीज जो आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो काम आएंगी, लीगल एक्सपर्टीज़ आपको बताएंगे कि अगर हम कोर्ट के अंदर जाएंगे इतना टाइम भी लगेगा हमारा और इतनी ज़्यादा फीस भी लगेगी, मीडिएटर के पास जाएंगे इसका टाइम भी कम लगेगा और हमारी फीस का भी इसके अंदर कम से कम काम है। फिर हमारा जो है जो हमारा वकील साहब हैं वो रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग मीडिएशन करेगा, यानी कि वकील को हम बाहर निकाल देंगे। वकील के लिए अगर कोई पार्टी अपना वकील लेकर आना चाहती है तो मीडिएटर का काम है कि वकील को भी साथ बिठा दें, लेकिन थोड़ा सा हम अपने मीडिएटर को समझाते हैं कि वकील साहब का रोल जो है ना वो थोड़ा सा पार्टीज, क्योंकि दिस इज द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज एंड द पार्टीज आर गोइंग टू डिसाइड देयर ओन डिस्प्यूट बाय योर फैसिलिटेशन, मीडिएटर की फैसिलिटेशन। तो वकील साहब के जहाँ पर लीगल एडवाइजेस हैं, जहाँ पर लीगल कंसर्न है, वहाँ तो वकील साहब का ठीक है, आपको इंटरफेरेंस कबूल होनी चाहिए, लेकिन अदरवाइज द पार्टीज शुड डिसाइड देयर ऑन डिस्प्यूट, जिसमें विन विन सिचुएशन जो पार्टीज अपनी लेके जाती हैं। तो कॉम्प्लेक्स केसेस में स्पेशली इन बैंकिंग ऑफन रिक्वायर एडवोकेट्स टू इंश्योर ऑल लीगल, जो बैंकिंग केस में जितनी भी हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, चीज़ें हैं, वो सारी वकील साहब उनको समझाएंगे। रेगुलर अपनी रिप्रेजेंटेशन फ़ी ड्यूरिंग मीडिएशन अपनी जो है वो चार्ज कर सकते हैं बाय अटेंडिंग मीडिएशन सेशन। मीडिएशन सेशन में सपोज़ एक सेशन हुआ, 2-4 सेशन हो जाते हैं बाज़ों अगर एक ही सेशन में सारे डिस्प्यूट हल हो जाते हैं तो आप एक लमसम फ़ी भी तय कर सकते हैं। वकील साहिबान उनको कंसर्न होने की ओवर द मीडिएशन प्रोसेस उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ख्याल है। और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर आप जब ड्राफ्टिंग सेटलमेंट एग्रीमेंट, जैसे सर ने भी बताया कि अब मीडिएटर जो है जब वो अब फैसला कर लेगा और आपने पार्टी से कहा कि ठीक है आप अपना बता दें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो वकील का काम है कि बैठो लाओ मैं ड्राफ्ट करता हूँ इसको, जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है। दोनों वकील मिलके दोनों पार्टी से एक सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर देंगे। जैसे कि आप कहते हैं, हम जब केसेस को ये सारा सिस्टम नहीं था तो हम 23 सबसेक्शन 3 में जो है वो CPC में मैटर को रिजॉल्व करते, तो वो भी तो एक एग्रीमेंट बना के लेकर आते थे बिटवीन द पार्टीज के, दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशंस ओवर व्हिच द पार्टीज हैव एग्रीड अपॉन एंड द कोर्ट मे पास ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ दिस टर्म्स एंड कंडीशंस, द सूट में भी डिक्रीड। तो सारी चीज़ें एक साथ हो जाती थी, अब भी हो सकती हैं थ्रू मीडिएशन, और वकीलों का रोल इसके अंदर क्रूशल होगा। मैं समझता हूँ शायद उस एडवोकेसी से ज़्यादा, वो ठीक है एडवोकेसी में आप अपना जोहर दिखाने का मौका है, लेकिन यहाँ जो है कम से कम आप इस नैश पे तो पहुँच जाते हैं कि पार्टीज को एक केस में, जिस केस में आप 6 साल में या 3 साल में जो है वो उसका डिस्प्यूट लेते हैं, उसका फैसला लेते हैं, वो आप 6 दिन में और 5 दिन में उसका जो है वो फैसला ले रहे हैं, फीस आपको उतनी ही मिल रही है, तो आपका जो है ना वो कि हल्दी लग रही है ना फिटकरी और रंग चोखा आ रहा है। आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं मीडिएशन में, बहुत सारे लोग हैं। आप देखें बैंकिंग सेक्टर में एक मखसूस किस्म के लोग आते हैं,
मैं आजकल हेड कर रहा हूँ ऑफेंसेस इन बैंक्स कोर्ट, और वहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक ही किस्म के जो है वो वकील, मतलब एक समझने के बहुत से बहुत 20 वकील होंगे ऐसे मखसूस जो इसी किस्म के केसेस में, तो उनकी स्पेशलाइजेशन है। आप भी मीडिएशन में जो है वकील साहिबान जो हमारे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं या जो हमारे दीगर हैं वो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं मीडिएशन में और अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाते हुए, और उसके अंदर जो है वो फिर पेश हो सकते हैं। और एक्सपर्ट इन मीडिएशन होगा, स्पेशलाइजेशन मीडिएशन होगी, ये सारी चीज़ों में उनका अपना एक रोल होगा, इफेक्टिव रोल होगा, जिसके अंदर कोई उनका डिनाइल नहीं कर सकते कि हम वकील का जो है वो बिकमिंग अ सर्टिफाइड मीडिएटर, और साइमल्टेनियसली चांस भी है आपके पास कि आप सर्टिफाइड मीडिएटर हो जाएं, और सर्टिफाइड मीडिएटर होने के बाद ये सारी प्रोसेस जिसमें आप एज अ वकील हिस्सा ले रहे हैं, आप खुद भी मीडिएटर बन के बैठ जाइए वहाँ पर, और उसकी फ़ीस आप जो है वो इंशाल्लाह ये कल्चर आएगा हमारे यहाँ कि हमारे मीडिएटर्स जो अपनी फ़ीस चार्ज कर रहे होंगे। और शाहिद साहब ने उम्मीद तो दिखाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है, इसलिए कि भी घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, तो लिहाजा ज़रूरी है। Advocates can be trained to become certified mediators, और ये सारे जो है वो जैसे पहले भी बात होती रही है, इस पर भी महज रिपीटिशन आ रही है अब तो, कि हाइब्रिड फी स्ट्रक्चर्स हैं वो हम जो है वो क्लेम कर सकते हैं कि एक जो है वो हमने दे दिया सिस्टम के, आप इस सिस्टम के तहत जो मैं चाहिए 2 दिन में फैसला हो जाए 10 दिन में हो, मैं इतनी फ़ी चार्ज करूँगा। अब वो अगर आपको कायद-ए-आज़म का वाक़या हो, याद हो कि वकायत-ए-आज़म ने केस में जो है वो फ़ीस तय की अपनी 5,000 रुपये, उस ज़माने में 5,000 रुपये पर हेयरिंग, और वो किसी पटेल साहब का केस है। उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए सर कि कितनी हेयरिंग्स जो है वो इसमें लाइकलीहुड हैं, तो उन्होंने कहा शायद 5 हेयरिंग्स में केस का डिसीजन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं 9 हेयरिंग्स में कहा था कि हो जाएगा केस का डिसीजन, तो उन्होंने 45,000 रुपये जो है उनको दे दिए कि 45,000 रुपये आप रख लीजिए। इत्तेफाक की बात केस जो है वो 3 हेयरिंग्स में डिसाइड हो गया, तो कायद-ए-आज़म ने 15,000 रुपये रख कर और बाकी पैसे जो है वो उनके 30,000 रुपये वापस किए। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारी तो आपकी बात तय हो गई थी कि मैं इतने लेंगे, आपने कहा था कि 9 हेयरिंग होंगी, मैं 9 हेयरिंग के पैसे दे दिए, तो मैंने ले रहा वापस, लेकिन कायद-ए-आज़म ने वापस कर दिया था। ये जो कायद-ए-आज़म केसेस है वन ऑफ द केसेस है। तो ये वो चीज़ें हैं जो एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि वकील का अपना एक, लेकिन हम यहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम में भी अपने जो है वो केसेस को फ़ीस को जो है वो चार्ज कर सकते हैं और अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वकीलों को अपनी फ़ीस के लिए भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब हम आएंगे इसके पोस्ट मीडिएशन इन्वॉल्वमेंट भी है वकीलों की, न सिर्फ ये कि ये जब ये इसको हम कोर्ट का ऑर्डर बनाने के लेके जाएंगे मीडिएटर के पास से, फिर कोर्ट का ऑर्डर के लिए जाएगा, तो फिर उसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी हमें वहाँ पर, हम मीडिएटर के पास जो है वो वकील साहब दोबारा पेश होंगे और उसको कोर्ट का ऑर्डर बनाएंगे। तो पोस्ट मीडिएशन इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी हमारी। उसके बाद हमारा जो है वो दोबारा वही आ गया कि एम्बैरेसिंग मीडिएशन वाइल सिक्योरिंग एडवोकेट्स रोल। अब हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे। मैं तो तकरीबन सहमत हूँ, इस बात से एग्री करता हूँ कि ये चीज़ें वकील के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तवज्जो से इस बात को सुना, गो कि महज रिपीटेशन थी। मेरे दो साज़ा कराम दोनों शाहिद शफीक साहब और फ़हीम साहब, मेरे जो है वो फ़हीम साहब तो मेरे सेशन जज भी रहे हैं और इनसे बहुत कुछ सीखा है और हमेशा सीखते रहे हैं। अकेडमी में भी सीखा, शाहिद साहब भी हमारे उस्ताद की हैसियत रखते हैं, इनसे भी बहुत कुछ सीखा हमने। इन सब की बातों को मैंने सप्लीमेंट यहाँ पर किया है। आपका शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बत से सुना। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for giving us the best practices in mediation. Now, I would like to invite Dr. Mufti Muhammad Awais Naeem Saab. He is an Islamic researcher and theologian. He is a certified Sharia advisor and auditor from Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, AOFI, Bahrain. Dr. Muhammad Awais is a distinguished Islamic finance expert with 14 years of experience in Islamic jurisprudence, finance and education. Last year, he received the Best Trainer Award from the State Bank of Pakistan, sir. So he'll be talking on Islamic perspective of mediation. Please, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दो बातों पे मुझे थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। एक तो मैडम ने इशारा किया कि मीडिएशन इस्लाम इसको कैसे देखता है, और
हमारे ऑनरेबल जजेस चूँकि यहाँ हैं तो इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि मैं बैंकिंग सेक्टर में भी एक बैंक के साथ एज अ रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर काम कर रहा हूँ, तो सम टाइम हमें वो केसेस जो लिटिगेशन में जा रहे होते हैं और वहाँ इस्लामी बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो भी आप हज़रात के सामने रखूँ ताकि गोइंग फॉरवर्ड आप हज़रात इस पे हमें कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, ये बात हमने कही भी होगी, सुनी भी होगी, इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, एक अमन का मज़हब है इस्लाम। और अमन वहाँ होता है जहाँ झगड़े नहीं होते हैं, जहाँ इख्तलाफात नहीं होते हैं, जहाँ परेशानियाँ नहीं होती हैं। चुनाचे इस्लाम का जो नोबल रूल है किसी भी माशरे को स्टेबल रखने के लिए, वो ये है कि अमन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसी के लिए अदल दिया गया है कि अमन डिस्टर्ब ना हो। उसी के लिए वो सारी चीज़ें रोक दी गई हैं जो अमन को डिस्टर्ब करती हैं। फसाद, झगड़ा जो अमन को डिस्टर्ब कर दिया, रोक दिया गया है। फितना अमन को डिस्टर्ब कर दिया, रोक दिया गया है। यू कैन नेम इट। वो सारी चीज़ें, किसी के बारे में बुरी बात कह देना, वेदर उसके अंदर वो पाई जाती है नहीं पाई जाती, उसको ग़िबत के ज़ुमरे में लाके इस्लाम ने मना कर दिया, बिकॉज़ ये फर्स्ट सीड होगा जो जाके झगड़े का सबब बनेगा, और झगड़ा अमन को ख़राब करेगा तो अमन नहीं ख़राब होना चाहिए। तो इस्लाम में जो नोबल एक कॉज है, जो एक माशरे को जो एक लेवल पे रखने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, वो ये है कि अमन बाकी रहना चाहिए। सो इसके लिए पहली जो गाइडलाइंस इस्लाम देता है वो ये है कि हर शख्स वो दूसरे के लिए भी वही सोचे जो वो अपने लिए सोचता है। ऑब्वियसली ये हदीस मुबारक है, आप हज़रात ने बारहा इसको सुना होगा। तो जब एक शख्स अपने लिए जो सोचता है वही दूसरे के लिए भी सोचेगा, तो डेफ़िनेटली वो अपने लिए कभी बुरा नहीं सोचता। वो ये नहीं सोचता कि मेरे साथ अगर कोई झगड़ा करे या मुखालफत करे या कोई करे, तो जो लफ्ज़ मेरे बारे में कहे, आई वुड लाइक टू से अबाउट सेकंड पार्टी सेम वर्ड्स मुझे वही बात करनी है, या जो चीज़ें भी होनी है। जैसे मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई धोखा करे, तो मुझे भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। इसी तरह जैसे मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई हक़ मारे, इसी तरह मुझे भी किसी का हक़ नहीं मारना चाहिए। तो इस्लाम का जो बेसिक एक रूल है, जो थीमेटिक एक रूल है, वो ये है कि किसी के साथ आप झगड़ा नहीं करें, किसी के साथ आप इख्तिलाफ़ रख सकते हैं। इख्तिलाफ़ और झगड़े में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। इख्तिलाफ़ एक लॉजिकल और एक राय का मुख्तलिफ होना है, वो हर जगह होता है, घरों में भी होता है, मीडिएशंस में भी होता है, और जो है वो लिटिगेशन में भी होता है, शरीयत में भी होता है, हर जगह होता है, लेकिन उसको झगड़े तक नहीं आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। और बिलफ़र्ज़ एक शख्स है, वो कोशिश करता है कि वो अमन बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी समहाउ झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा हो जाता है तो इस्लाम फिर ये तरगीब देता है कि भाई अगर झगड़ा हो गया तो माफ़ कर दो। ये एक दूसरी गाइडलाइंस हैं कि माफ़ कर दो। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हक़ पर होने के बावजूद अपने मुखालिफ को माफ़ कर दे, तो मैं उसके लिए जन्नत में एक मुकम्मल घर की ज़मानत देता हूँ। इतनी बड़ी फजीलत बताई गई। तो सेकंड स्टेप इज़ कि अगर आपके दरमियान झगड़ा हो भी गया है, वेदर यू आर ऑन राइट साइड और नॉट, माफ़ कर दो। माफ़ी से मामला ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे डिस्प्यूट्स ऐसे होते हैं जो तो पहले स्टेप पे ही जो है किल हो जाते हैं कि वो माफ़ हो जाते हैं। जैसे फैमिली लॉज में होता है, फैमिली मसाइल में होता है। हम जब ख़ुद दारुल इफ्ता में बैठे हुए होते हैं, हमारे पास लोग न जाने कैसे कैसे मसाइल बेचारे लेके आते हैं, लेकिन वो उनको ये कहा जाता है, जब बताया जाता है कि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है आपस में बैठने के लिए, माफ़ करने के लिए, तो 60 और 70% डिस्प्यूट्स जो है वो आपस में दोबारा से बैठ कर रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर ये भी ना हो, सम टाइम ऐसा भी होता है कि ये भी नहीं होता। ये तो एक तो झगड़ा ही पैदा ना करें, सेकंड हो जाए तो माफ़ कर दें। थर्ड वन ये कि अगर झगड़ा हो जाए, अब जब कोई माफ़ करने की पोजीशन में भी नहीं है, तो बहुत सादा लफ्ज़ों में कहना चाहिए कि अब हालत अमन नहीं, अब हालत जंग हो गई है उन दो पार्टीज़ के दरमियान। वो एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाह रहे। तो क्या है, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने जो अदर सोसाइटी ऑनर्स हैं, जो सोसाइटी मेंबर्स हैं, जो दीगर मुस्लिम्स हैं या दीगर जो लोग हैं, उनको फरमाया गया कि इन दो भाइयों में बैठ के आप रेजोल्यूशन करवा दें। चुनाचे सूरतुल हुजुरात की आयत मुबारक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन ताइफ़तानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। अगर दो लोग तुम लोगों में से आपस में लड़ पड़ें, झगड़ पड़ें, कोई उनका मसला हो जाए, मैटर हो जाए, तो तुम्हारे ज़िम्मे ये लाजिम है कि तुम जाके उनके दरमियान सुलह करवा दो।
तुम उनके जो है वो मैटर को रिजॉल्व करवा दो। कैसे होगा मैटर रिजॉल्व? थ्रू द मीडिएशन। ये मीडिएशन है। अगर और ये यहाँ पे एक जो बड़ा नुक्ता मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहूँगा, इसमें क्या है, इसमें ये नहीं फरमाया कि वो लोग तुम्हारे पास आएँ और तुम उनकी मीडिएशन करो। ये फरमाया कि तुम लोग उनके पास जाओ और उनकी मीडिएशन करो। चुनांचे एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए आप अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी तशरीफ़ लाया करते थे, और आपका और मस्जिद नबी का इतना लाजिम मलजूम था नमाज के कभी साहबा ने मिस होते देखा नहीं। चुनांचे एक दफ़ा नमाज में ताख़ीर हो गई, काफ़ी ताख़ीर हो गई, तो साहबा इंतज़ार करते रहे कि जब तशरीफ़ लाएंगे तो नमाज होगी। तो पता चला जब आप तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि मैं क़ुबा के मकाम पर दो लोगों के दरमियान में झगड़ा हो गया था और मुझे ख़बर हुई और मैं उनके दरमियान मीडिएशन के लिए सुलह करवाने के लिए गया हुआ था। अब आप देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, उनसे बड़ी हस्ती कोई नहीं, नमाज का वक्त है, नमाज से बड़ा कोई मसला कोई नहीं, फिर वो जाके मीडिएशन करके आ रहे हैं और फिर आके साहबा को बता रहे हैं, तरगीब भी दे रहे हैं। और आप अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर इरशाद भी फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ की ख़बर न दे दूँ जो तुम्हारे रोज़े, नमाज और सदक़े इन सारी चीज़ों से अफजल है। तो साहबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह क्यों नहीं, ज़रूर फरमाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाहु ज़ातिल बैन, दो लोग जिनके आपस में इख्तलाफ हो गया, जिनका झगड़ा हो गया, उनके दरमियान सुलह करवा दें, मीडिएशन करवा दें। दैट वुड बी द बेटर एक्ट दैन द योर नमाज, योर सदका, योर रोज़ा। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मीडिएशन जो है वो इस्लाम में इसको अप्रिशिएट, न सिर्फ ये कि अप्रिशिएट किया गया है, बल्कि ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर हम सब के कंधों पर है। आजकल तो एक नॉर्म है कि भाई इसका मैटर है, वो ख़ुद जाने, हमें क्या उसमें जाने की ज़रूरत है। इवन दो भाई अगर दो घरों में रह रहे हैं पड़ोस में, तो एक घर में कोई मसला हो जाता है तो दूसरा बराबर वाला भी ये नहीं सोचता कि वो ये कहता है यार इसका मैटर है, मुझे इसमें नहीं। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ख़ुद हुजूर ने फरमाई, ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। फिर क्या है, पहला स्टेप हो गया झगड़ा ही ना करें, दूसरा स्टेप हो गया अगर झगड़ा हो जाए माफ़ कर दें, तीसरा स्टेप हो गया माफ़ भी ना हो रहा हो, फिर जो लोग हैं वो आपस में बैठ के इनकी मीडिएशन कर दें। चौथा स्टेप जो है, अगर मीडिएशन से भी काम नहीं चल रहा, बात नहीं बन रही, तो द लास्ट और आखिरी जो रिज़ॉर्ट है और जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो है काजी, वो है अदालत, वो है जज। तो हमारे यहाँ चूँकि ये इस तरह से पूरी तरह से निज़ाम शुरू से नहीं बनाया गया, इसीलिए यही वजह है कि हम में जब भी कोई छोटा मोटा भी इख्तिलाफ़ होता है, कोई 500-800 रुपये की चोरी का भी मसला होता है, तो हम सीधे भागते हैं कोर्ट की तरफ। हालांकि ये चीज़ें कोर्ट, इसीलिए इस्लाम में बसा औक़ात जो है वो काजी का जो मर्तबा है वो सुल्तान से भी बड़ा होता है। काजी को, सुल्तान को काजी के खिदमत में हाज़िर होना पड़ता है जब मसला झगड़े का हो, मैटर का हो। तो ये काजी और जो जज है उसका जो मर्तबा इस्लाम में है वो बहुत बड़ा है। यानी मैं इसकी तरफ डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कि काजी एक शरई हुक्म को भी तब्दील कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 फ़िक़े हैं, 6 फ़िक़े हैं, उन फ़िक़े में से किसी एक फ़िक़े के मुताबिक काजी अगर डिसीजन दे देता है तो वो फ़िक़ डिसीजन इम्प्लीमेंटेड होता है। शरई एंगल से भी मुफ्ती साहब भी पाबंद होते हैं कि वो उसी के मुताबिक डिसीजन देंगे, ये शरिया के रूल है, आप अलैहिस्सलाम की अहादीस है। तो काजी और जज और अदालत जो है वो दैट टाइप ऑफ डिफेंस है, दैट लाइन ऑफ डिफेंस है, जहाँ पे हर छोटा केस, हर बड़ा केस, हर ईच एंड एवरी मैटर नहीं जाना चाहिए। तो अगर मैं सोचें थोड़ी देर के लिए कि अगर मामलात ऐसे रिजॉल्व होते हों, हर बंदा पहले तो ये कोशिश करे कि झगड़ा ही पैदा ना हो, अगर हो गया तो माफ़ी तलाफ़ी से काम बन जाए, नहीं हो रहा मीडिएशन के ज़रिए हल हो जाए, तो बहुत सारे मसाइल पहली लाइन पे हल हो जाएंगे, बहुत सारे दूसरी पे हल हो जाएंगे, तीसरी पे हल हो जाएंगे, बहुत कम रह जाएंगे जो चौथी लाइन पे और अल्टीमेट लाइन पे आएंगे। फिर ये जो अंबार लगे हुए हैं केसेस के, ये भी नहीं लगेंगे। इस लिहाज से ये मीडिएशन, अच्छा इन सब में आज की जो दुनिया है मॉडर्न जो है, और इंस्टेंट एक रिएक्शन की जो हमें आदत है कि यहाँ से बटन दबाएं और यहाँ से रिजॉल्व हो जाए, इस केस में जो सबसे फिजिबल मैं समझता हूँ और सबसे जो एक्टिव और वर्केबल सोल्यूशन मैं समझता हूँ वो मीडिएशन है। इसलिए कि अदालत के अंदर कार्रवाई है, उसके अंदर लॉ है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ एक पूरा पैरामीटर है जिसके अंदर से घूम के आना होता है। लेकिन मीडिएशन के लिए शायद उतनी मुश्किलात नहीं। आज की नशिस्त में जो मैंने सीखा हज़रात जजेस से और जो मैं समझ पाया, वो मैं यही समझ पाया कि मीडिएशन ये आसान हल है कानून के एतबार से भी बनिस्बत अदालत के, बनिस्बत लिटिगेशन के। चुनाचे इन सारी चीज़ों को देखते हुए
इस्लाम की रोशनी भी हमें समझ में आ गई कि इस्लाम इसको ना सिर्फ ये कि अप्रिशिएट करता है मीडिएशन को, बल्कि ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी भी डालता है। तो यहाँ तक तो मेरी पहली बात का ख़ुलासा हो गया कि इस्लाम में मीडिएशन को किस तरह से देखा गया। अब मैं दूसरी अपनी बात की तरफ आता हूँ, जिसमें ये है कि चूँकि इस्लामिक बैंकिंग कदर मुख्तलिफ है नॉर्मल बैंकिंग से, ये एक सब्जेक्टिव डिस्कशन है, इसमें हम फ़िलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन यस ये डिसाइडेड भी है, फेडरल शरिया कोर्ट की तरफ से भी है और स्टेट बैंक की तरफ से भी है, स्टेट की तरफ से भी है, शरिया स्कॉलर्स की तरफ से भी है। ये एक अब जो है ये एक हकीकत है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें सम टाइम ये होता है कि जो रेजोल्यूशन होता है ऐसे केसेस का जिनमें डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वहाँ पे हम वैसे तो अपने जितने भी एग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं तो हम उसमें ये कोशिश करते हैं कि ये वर्डिंग ज़रूर डलवाते हैं कि जो भी डिस्प्यूट होगा उसका जो रेजोल्यूशन होगा वो शरिया बोर्ड ऑफ द बैंक की परमिशन से होगा, शरिया बोर्ड ऑफ द बैंक के कंसर्न से होगा, ताकि वो जिस तरह से ट्रांजैक्शन शरिया कंप्लाइंट हुई थी उसका रेजोल्यूशन भी शरिया कंप्लाइंट हो। लेकिन चूँकि अब जो ये वाली साइड है, मीडिएशन की साइड है, या ये कि जो लॉ की साइड है, इसमें इस तरह से डेवलपमेंट शायद शरिया लॉ की नहीं हुई है जो जिस तरह से इस्लामी बैंकिंग की डेवलपमेंट हो रही है। तो यहाँ पे कभी कभी हमें लगता है कि मिसमैच होता है, कभी कभी ऐसे रीज़न्स की बुनियाद पर जो कानूनी एतबार से तो वैलिड रीज़न्स होते हैं और ठीक रीज़न्स होते हैं, लेकिन वो शरिया के अंदर उनका कुछ मैटर डिफरेंट होता है। जैसे पेनल्टी है, फाइनेंशियल पेनल्टी है, हम सब समझते हैं कि इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फाइनेंशियल पेनल्टी जो है वो एज डायरेक्ट फ्रॉम द स्टेट तो हो सकती है, लेकिन फ्रॉम दी पार्टी टू अनदर पार्टी नहीं हो सकती, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक एग्जांपल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अगेंस्ट जो है वो पैसे हैं, इसी तरह टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अगेंस्ट पैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की इस्लामी बैंकिंग में उस तरह से प्रिवेल नहीं करती जिस तरह से कमर्शियल बैंकिंग, कन्वेंशनल बैंकिंग में प्रिवेल कर रही होती थी। तो आज जब डिसीजंस आ रहे होते हैं तो हमें जो डिसीजंस लिटिगेशन के हो जाते हैं उनके बाद भी बैठ के उसका शरिया स्ट्रक्चर सोचना पड़ता है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि जब लॉ और ये जो चीज़ें हैं ये तो अपने वक्त पे चेंज होती रहेंगी और इनके अंदर तो जो डेवलपमेंट होनी है वो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह होती रहेगी। लेकिन जो व्हाट वी कैन डू राइट नाउ, मीडिएशन को हम अगर शरिया के साथ जोड़ के चलाएंगे तो शायद हमें वो मसाइल नहीं आएंगे। जैसा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने फरमाया कि कमर्शियल लॉज, कमर्शियल जो इश्यूज़ होते हैं, कमर्शियल जो मसाइल होते हैं, बैंकों के जो मसाइल होते हैं, उसमें ईगो के मसाइल बहुत कम होते हैं, उसमें पैसों के ही बहुत मसाइल होते हैं कि किसी से अरेंज नहीं हो रहे या कोई इतने देना चाह रहा है, इतने नहीं देना चाह रहा। वो मीडिएशन के थ्रू आई पर्सनली बिलीव कि ज़्यादा आसानी से और मोर शरिया कंप्लाइंट वे में हल हो सकते हैं। माई होप कि ये मामला जो हैं इसी तरह से चलें और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमें इस नहज पे लेके आए कि हम जल्द से जल्द अपनी मीडिएशन, और अगर हम इस्लामिक की हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको 60-70% जो इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं, वो मीडिएशन के थ्रू हल होते हुए नज़र आएंगे। बाकी काजी की मजलिस में बहुत बड़े बड़े मसाइल जाते रहे हैं और हमारे यहाँ भी इंशाल्लाह ऐसा होगा अनकरीब। जैसे स्टेट मेहनत कर रही है, जैसे हाई कोर्ट्स मेहनत कर रही हैं, जैसे हमारे शरिया स्कॉलर्स मेहनत कर रहे हैं। विद दिस मैं अपनी इस गुफ्तगू का अख्ताम करता हूँ और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इन तमाम मेंबर्स का जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आके अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का कि जिन्होंने अपनी बहुत मैं समझता हूँ कि पुरमग़ज़ गुफ्तगू से हमें जो है वो मुज़य्यन किया और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम। Jazakallah sir, for giving us the Islamic perspective of mediation. Now the Q&A session is open for the floor. If anybody wants to ask any questions to the judges or Dot Sab, you're open to ask questions. के तहत जो है वो मीडिएशन हो सकती है और उसको हम फिर कोर्ट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर एक कस्टमर है वो बैंक के पास जाता है थ्रू हिज लीगल काउंसिल और थ्रू हिज मीडिएटर कि जी बैंक के साथ आप मेरा ये डिस्प्यूट है या मेरा इशू है इसको रिजॉल्व करवा दें, और बैंक जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाता और कहता है कि नहीं जी हम तो कोर्ट में ही जाएंगे, तो क्या जो इस किस्म के करस्पॉन्डेंसेस हैं विद द बैंक by the customer or by the legal counsel or by the mediator of the client, उसका क्या वेटेज है ड्यूरिंग लिटिगेशन? कि अगर लिटिगेशन में अगर वो चले जाते हैं तो क्या
ये जो करस्पॉन्डेंस इन्होंने की है कस्टमर ने, इसका कोई वेटेज है, कोई इसके बारे में कोर्ट व्यू लेता है या नहीं लेता? सेक्शन 89B अभी इतना नहीं, इस मज़ीद आगे नहीं कहता, कहता है कि केस में बी रेफर्ड, या फिर 89B कहता है कि पार्टीज में इटसेल्फ टेक डिसीजन कि वो कोर्ट वाले दरवाजे को नहीं खटखटा रहे, या मीडिएटर वाले दरवाजे को खटखटा रहे हैं। KP और बलूचिस्तान का लॉ जो ड्राफ्ट मैंने किया है और उसके अब रूल्स भी मैं बनाने के प्रोसेस में हूँ, वहाँ मैंने इसका आंसर रखा है। वहाँ पे अगर दो फरीकैन अगर जाते हैं और जाके मेडिएशन के लिए जाने, कोई एक फरीक जाता है और दूसरा फरीक भी वहाँ जाता है लेकिन वो उसको एग्री नहीं करता, तो कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर जब मीडिएटर वापस भेजेगा तो वो एक नोट ये लिखेगा कि फेलियर इज़ बिकॉज ऑफ ए। So when the court is going to dispose of that matter, and court will observe कि वो जो decision हो रहा है, it is very close to the offer which was made by one of the party, तो फिर उस पार्टी को जिसने उस ऑफ़र को रिफ्यूज़ किया था उस पर वो कॉस्ट लगा सकता है। तो वहाँ पे ये है। सिमिलर जैसी लेजिस्लेशन जो मैंने भी कोयटा बलूचिस्तान के लिए बनाई थी, सिमिलर ड्राफ्ट जो है वो इधर सिंध में भी भेजा है। तो आने वाले टाइम के अंदर ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आप बैंक, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई हैं मेडिसिन सेंटर्स, बैंक अगर इंस्टेड ऑफ वकील उधर पहले करके एक तजर्बा कर ले तो शायद हो सकता है कि इस वक्त मैं शाहिद साहब हाँ होंगे जज किसी ज़माने में अभी रिटायर्ड है, ठीक है ना, तो शायद द पीपल में नॉट गिव मी सो इम्पोर्टेंस। तो चलो भाई, कोर्ट एनेक्स मेडिसिन सेंटर वो मौजूद है, तो हाई कोर्ट की बिल्डिंग में, तो आपका केस अगर आप अपने कुछ वहाँ रेफ़र करें ना तो बेहतर हो सकता है। इसी तरीके से जो लिटिगेंट है, जो आपका कस्टमर है, बैंक कहता है कि मैं तो कोर्ट में ही जाऊँगा और वो कहता है कि सर ऐसा कर लें, तो वो एप्लीकेशन देके आपको वहाँ बुला सकता है और कहीं एक अटेम्प्ट हो सकता है कि किस तरीके से रिजॉल्व हो सकता है। के बजाय मीडिएटर के पास जाना चाहता हूँ, तो उसका जो ये कहना है कि मैं मीडिएटर के पास जाना चाहता हूँ, तो ये उसके अगेंस्ट में तो यूज़ नहीं होगा। शायद सर का मतलब ये हो, क्या ये भी है? माय लीगल काउंसिल और एनीबडी एल्स जो कोई भी बेसिकली उसको मीडिएट करता है, और बैंक जो है वो कहता है कि नहीं जी मुझे तो कोर्ट ही जाना है, मैं तो हाथ में रख लूँगा, वो जो एक बात बीच में चली थी। तो इसके बारे में क्या है कि आप एक अगर लेट सपोज लेटर लिखते हैं फॉर मीडिएशन टू द बैंक, और बैंक उसको डिक्लाइन कर देता है और उसके अंदर सेटलमेंट टर्म्स भी दी हुई होती हैं, उस पर क्या बेसिकली कोर्ट का व्यू होता है? ये मेरा सवाल है। अच्छा राइट नोट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारी लेजिस्लेशन में, लेकिन जो मैंने बताया कि जो मैं दूसरी एक लेजिस्लेशन मैंने सजेस्ट की है जो कोयटा के अंदर जो अभी इंट्रोड्यूस भी हो गई है, उसमें इसका सोल्यूशन है कि अगर वो क्लोज होगी, मिसाल के तौर पे बैंक ने कहा नो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, वी हैव टू ऑप्ट कोर्ट, तो वो और कोर्ट अल्टीमेटली डिसाइड करता है और वो क्लोज टू उस ऑफर होती है, तो फिर बैंक पे पेनल्टी, बैंक पे जिसे हम कहते हैं अपने CPC के अंदर कॉस्ट, सेक्शन 35 और 35A, वो वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे लेके गए हैं। आपका कहने का मकसद ये ड्यूरिंग प्रोसीडियर उसको वेटेज दी जाती है या उसको देखा जाता है कि जी पार्टी का क्या बेसिकली इंटेंशन है फॉर सेटलमेंट? इंटेंशन है सेटलमेंट, हम यहाँ नहीं, हम अपने प्रोविंस की बात नहीं कर रहे, वहाँ लेजिस्लेशन ने उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया बलूचिस्तान में, यहाँ पे वो हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, असेंबली में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी उसकी वेटेज होगी, उस प्रपोजल की वेटेज होगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। थैंक यू। सिविल सूट्स में जैसे हमारे पास एक प्रोसीजर होता है डिस्कवरी एंड इंटरोगेटरी, सिविल सूट्स में जैसे हमारे पास एक प्रोसीजर होता है डिस्कवरी एंड इंटरोगेटरी, अच्छा अमेंडमेंट उसको छोड़ दिया गया नहीं, उसको जो है ना रिडेंडेंट कर दिया। इनफैक्ट जब मीडिएशन के लिए गए, मीडिएशन फेल हो गया, तो पार्टीज जो हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती हैं मीडिएशन के लिए, उनको उसमें एडवांटेज होता है। कोई पेनल्टी वगैरह का मेरा ख्याल में अभी तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, और ये पेनल्टी लगाना किसी एक पार्टी पर शायद ये मीडिएशन की स्पिरिट के भी खिलाफ होगा। पार्टीज़ जो हैं वो मोर स्पेसिफिक हो जाती हैं कि जी जैसे जब डिस्कवरी होती है तो डिस्कवरी में और इंटरोगेटरी के बाद पार्टीज़ जो हैं उनकी वो लिटिगेशन नैरो डाउन हो जाती है, तो मीडिएशन के फेल होने के बाद लिटिगेशन नैरो डाउन हो जाएगी। मेरा ख्याल में ये ज़्यादती होगी कि किसी भी पार्टी पर जो ना
पेनल्टी लगाई? जिन जिन ममालिक को मैंने ऑब्जर्व किया, जहाँ जाने का भी मुझे मौका मिला, वो डर ही सिर्फ कॉस्ट, एंड दैट कॉस्ट इज़ द कंपेलिंग सर्कमस्टांस के भाई उसे मेडिएट कर जाओ। वो इतनी हैवी कॉस्ट है कि वो हो जाओ कि उस वकील की भी दो और अपने वकील की भी दो और दूसरे वकील की भी दो। वहाँ कुछ ये ऐसे टूल मेडिएशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो लिटिगेशन जिसके अंदर जो है लिटिगेंट जो है वो दूसरी पार्टी को सिर्फ ड्रैग कर रहा है, लेकिन बात यह है कि सिर्फ मीडिएशन के फेल होने से कॉस्ट नहीं आती है। मीडिएशन फेल हो गई, मीडिएशन फेल होने के बाद दोनों पार्टीज जो है वो स्पेसिफिक हो जाएंगी कि जी हमारा जो है डिस्प्यूट इस हद तक है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैं समझता हूँ जिस तरह से कि इंट्रोगेटरी और डिस्कवरी में होता है कि ये प्रोसेस अगर कर लिया जाए तो सिविल सूट जो है उसमें पार्टीज ज़्यादा स्पेसिफिक होके लिटिगेशन में जाती है। ये बाकी सारे साथियों के लिए कि इंटेरोगेटरीज लफ्ज़ वहाँ में इस्तेमाल कर दिया तो वकील के ऊपर है कि वो इंटेरोगेटरीज करे नहीं करे, लेकिन अगर वकील इंटेरोगेटरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई करे, यानी सर्टेन क्वेश्चन बना के रख ले और दूसरे पार्टीज उसका जवाब दे, तो शायद इससे भी मामला रिजॉल्व हो। लेकिन वो प्रैक्टिस हमारी सिविल प्रोसीजर से निकली हुई है और CPC रिडंडेंट हो गई है। अच्छा, वो सर लफ्ज़ में लिखा है ना, तो वकील इज़ नॉट गोइंग टू ऑप्ट दैट। कोई और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या इवन ऑफ डिफॉल्ट के हवाले से, इफ देयर इज स्पेसिफिक क्लॉज ऑफ टू अप्रोच द कोर्ट, देयर इज नो सच क्लॉज ऑफ arbitration or any mediation, whether in such circumstances can a bank or a borrower can approach for mediation without having any mediation clause in the agreement? नहीं, कर सकता है। और मेडिएशन अच्छा वैसे अगर हम सर आपके लिए थोड़ी सी कि अगर हम ये कहें कि जितने हम फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू एंटर मैनी अदर एग्रीमेंट्स जो हमारे फाइनेंशियल एग्रीमेंट कस्टमर और बॉरोवर के दरमियान होने जा रहे हैं, अगर उन एग्रीमेंट की अगर एक क्लॉज मेडिएशन की डाल दें तो क्या है कि वो डाल दें। जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत ना भी डाले तो कर सकते हैं, लेकिन अगर डाल देंगे तो अब तो कंपल्सरी हो गया। अब तो कोर्ट कहेगी, जैसे आर्बिट्रेशन के लिए कहती है पहले आर्बिट्रेशन को एक्सरसाइज करो। सिविल सूट नहीं हो सकता। लाइकवाइज अच्छा सर, मीडिएशन में ये इशू नहीं है, लेकिन मीडिएशन के क्लॉज मसला ये है कि हमारे पास ये होना चाहिए कि आर्बिट्रेशन के क्लॉज के साथ अगर हम वाकई मीडिएशन की जावेद सर की तजवीज़ अच्छी थी कि ये भी डाल दिया करें तो कोई हर्ज नहीं। ये तो मैं सब उसी की तरफ आर्बिट्रेशन में सिर्फ मसला ये है कि आर्बिट्रेशन की क्लॉज जो है जब आ जाती है तो फिर सिविल सूट नहीं हो सकता, इसलिए आर्बिट्रेशन जो है। ठीक है तो यहाँ पे कुछ इस तरह डाल दिया कि या तो अब उन्होंने क्या किया, टर्की में हम गए तो वहाँ पे सिविल वो लेबर लॉस के लिए मैंडेटरी कर दिया कि फर्स्ट टू ऑप्ट मेडिएशन और फेलियर सर्टिफिकेट ले और फिर सूट फाइल कर दो। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि मेडिएशन करें, फेलियर सर्टिफिकेट पार्टीज के पास हो तो फिर वो सूट फाइल कर दे। तो हम कम से कम एक कंपल्सरी कुछ अंडर द एक्ट हम डे टू डे चलेंगी प्रोसीडिंग्स। हाँ, फिर बार वो फेल हो जाएगा तो डे टू डे चलेंगी। हमारी लेजिस्लेशन ये कहती है कि वंस द मेडिएशन इज फेल्ड तो प्रोसीडिंग विल बी कंडक्टेड डे टू डे। तो वो जो बैंकिंग कोर्ट के अंदर ये वकील साहब जो 10 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, वो तो ले ही सी बात की रहे हैं कि तुम्हारा केस 10 साल तक चलाऊंगा। सो मेडिएशन फेल तो डे टू डे चलेगा। तो अब मसले में आ गए। सवाल मेरा मुफ्ती साहब से था, अभी आपने बात भी की इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जो फाइनेंशियल इश्यूज में बैंक्स का जो है लेट पेमेंट और यानी जो इस तरह की जो कंडीशन लगाई जाती हैं वो, और इस्लामिक बैंक्स उनको कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शरिया जो मैं समझाऊँ कि इस तरह की कोई भी पेमेंट जो है वो शायद रिबा के अंदर दाखिल हो जाती है। सर का क्वेश्चन ये है कि इस्लामी बैंकिंग भी तो पेनल्टी लगाता है, यही सिंपल वर्ड। देखिए, हम पेनल्टी नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब आप पेनल्टी लगाते हैं तो आप उसको लेते हैं, अपनी जेब में रखते हैं और इससे इंजॉय करते हैं। कोई भी अगर पेनल्टी लगाता है तो पेनल्टी इज़ दी राइट ऑफ द पार्टी। लेकिन ये भी हमारा एक मसला है कि लोग टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं। अब इस मसले को कैसे हल किया जाए,
तो इसका हमने एक यूँ कह सकते हैं कि सोल्यूशन ही निकाला है। वो सोल्यूशन ये है, करते हैं इस्लामिक बैंक कि कस्टमर से एक अंडरटेकिंग लेते हैं एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, और कस्टमर ये अंडरटेक करता है कि अगर मैंने सम सॉर्ट ऑफ डेट जो तय हुई है उस डेट पर मंथली पेमेंट नहीं की तो मैं फॉर एग्जांपल 10,000 चैरिटी करूँगा। तो कस्टमर के ऊपर चैरिटी का बर्डन है, तो इस लिहाज से वो उसको 10,000 चैरिटी न करनी पड़े, वो टाइमली पेमेंट करता है। इन केस अगर वो डिले करता है तो बैंक जो है उससे 10,000 चैरिटी लेके वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है। तो ये दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि बैंक पेनल्टी तो नहीं लगा सकता, लेकिन ये मसला भी जेन्युइन है कि लोगों से पैसे भी बर वक्त कैसे, अच्छा ये पैसे बैंक के तो होते नहीं हैं, बैंक के पास जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे होते हैं। अब अगर इसको कस्टमर को आज़ाद छोड़ दिया जाए कि वो जैसे चाहे पैसे दे, जैसे चाहे ना दे, तो ये भी एक मसला है, डिपॉजिटर के साथ नाइंसाफ़ी है। तो ये एक टाइम बीइंग सोल्यूशन कंसीडरिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान और अदर वर्ल्ड, हमने ये सोचा है कि इस तरह से कस्टमर, अच्छा इसकी एक नज़ीर भी है हमारे माशरे में और इस्लाम में भी कि लोग मन्नत मानते हैं। जैसे किसी का अच्छा काम हो जाए उसके लिए भी मन्नत मानते हैं, कि किसी का बच्चे की पैदाइश के लिए भी मन्नत मानते हैं। तो ये वेरी रेलिवेंट टू द मन्नत कॉन्सेप्ट। लेकिन उसमें होता ये कि बैंक को कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि पैसे टाइमली मिल जाते हैं। अदरवाइज अगर उसने डिले कर दिया तो ये जो चैरिटी होगी, ये चैरिटी वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देगा। एक ज़मीनी सवाल और भी है, चैरिटी है या जो भी है, क्या ये जो कस्टमर है वो अपनी एनुअल ज़कात में एडजस्ट कर सकता है इसको? है मन्नत और ज़कात ये दो अलग चीज़ें हैं। मन्नत जो है इसको कहते हैं नज़र अरबी में, और ये सदका वाजिबा होती है, ये अलग से इम्प्लीमेंट होती है, अलग से लागू होती है आपके ऊपर। मसलन मैंने कहा कि अगर अल्लाह ताला मैं जो है वो मुझे जज बना दे तो मैं जो 1 लाख रुपए सदका करूँगा, तो मैं जो है ये मैंने मसलन के साथ कहा है, अगर अल्लाह ताला मुझे जज बना दे तो मैं 1 लाख रुपए सदका करूँगा। ये तो बन चुके हैं। नहीं, मैंने मसलन से कहा। अच्छा, 1 लाख रुपए अब मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन लाजिम है, ज़कात इसके अलावा लाजिम है, तो इस लिहाज से ज़कात मुझे अलग से देनी होगी, ये मुझे अलग से देनी होगी, तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझा शायद आप वो सवाल करेंगे कि क्या कस्टमर अपनी दानिश से, अपनी मर्जी से ये चैरिटी दे सकता है विदाउट बैंक? एक कस्टमर कहे जी मैं आपके थ्रू चैरिटी नहीं देना चाहता, मुझे आप पे एतमाद नहीं है, मैं अपनी मर्जी से, मेरे कोई करीब में मदरसा है या कुछ है, मैं वहाँ चैरिटी देना चाहता हूँ, तो हम उसको बोलते हैं कि यस आप ये चैरिटी दें, हमें रिकॉर्ड दे दें, क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर आपने हमसे ये एग्री किया है कि मैं ये इतनी चैरिटी पे करूँगा। और बीइंग स्टेट बैंक जो है जब वो ऑडिटर के तौर पे आएगा तो वो चेक करेगा कि इसकी पेमेंट लेट हुई थी तो किधर है चैरिटी, किस तरह से प्रोसीड हुई, ये ऐसे ही आपने लिखा हुआ है झूठ मूठ। तो रिकॉर्ड पर्पज से आप हमें रिसीट्स दे दें, आप जहाँ चाहे, क्योंकि चैरिटी मन्नत अल्लाह और बंदे का मामला है, बैंक और बंदे का मामला नहीं, लिहाजा आप अपनी मर्जी से कर दें, लेकिन हमें रिकॉर्ड दे दीजिए कि हमने कर दिया। तो इस लिहाज से भी ये बात समझ में आती है कि ये पेनल्टी नहीं है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि एक अलग परेशानी को हल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो कैसे वक्त पे पेमेंट कर दें। जी ये इशू मेरे सामने आया। अच्छा, इट वाज 2015 परहैप्स, तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने चैरिटी को कहा ये पेनल्टी ही है, ठीक है। अच्छा, वो जजमेंट जब मैंने पढ़ा तो मैं इस आइडिया से और इस फिलॉसफी से बहुत सहमत करता हूँ, और मैं बहुत अच्छा ख्याल है ये जो आपने भी किया, और इस चैरिटी को मैं समझता भी हूँ। तो मैं बहुत सारे वकील साहिबान से मैंने रिक्वेस्ट की कि इस इशू को हमें एजिटेट करने की ज़रूरत है, और कोर्ट को ये बात समझाने की ज़रूरत है इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इसलिए अच्छा है कि ये आपसे फ़ाइन नहीं मांग रहा, और जो फ़ाइन नहीं मांग रहा तो वो चैरिटी मांग रहा है। कोर्ट ने कह दिया, और जबकि वो बहुत समझदार खातून है जस्टिस आयशा साहिबा, तो उन्होंने उसको कहा नहीं, चैरिटी और द पेनल्टी विच इज़ जो नॉर्मल सिस्टम मांग रहा है वो एक ही बात है, उसको नहीं किया। मैंने कहा था, मैं मोहतरम वकील साहिबान से कह रहा था कि इस पॉइंट को ज़रा सा एजिटेट करने की ज़रूरत है, पहले एक स्कॉलरी आर्टिकल लिख के और फिर उसके बाद इसको कोर्ट के अंदर एजिटेट करके कहीं पे इस कॉन्सेप्ट को पब्लिक एट लार्ज को समझाएं, जजेस को मजबूरी तौर पे समझाएं कि लिबरल होकर हम अगर मांग रहे हैं और वो
दे भी रहा है तो एक अच्छा ख्याल है और वो अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसका फायदा कभी भी आपकी बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं हो रहा, कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, सॉरी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं शो हो रहा वो वाला, क्योंकि वो कमाई नहीं है, वो तो चैरिटी है, वो तो चैरिटी है, वो तो किसी गरीब के काम आएगी। इसमें कहीं आपको पहले एक स्कॉलरली उसकी तरफ जाए, फिर वो जस्टिस आयशा वाले को देखने एक और बात भी है जो जैसे हमारे मेरे ध्यान में कि आपका हम ये जो बैंकिंग कोड में आते हैं, हम ट्रेंड हैं जो जिस तरह से जजेस हम चीज़ों को उसी पैराई में देखते हैं। मेरा ये ख्याल है, मैंने कभी बैंकिंग कोर्ट में काम नहीं किया, मैं इस बात कह रहा हूँ, मगर ये जो है अपीलों में मैंने देखा है कि बैंक वो है इस्लामिक बैंक और वहाँ पर जिक्र हो रहा है मार्कअप का। अब ये जो है ये भी एक यानी जबकि बैंक मार्कअप चार्ज नहीं कर रहा है वो जो, तो फिर ये जो है ना ये भी बिल्कुल ऐसे ही उस जजमेंट में, जैसे कि हमारे जजमेंट्स में जो ना मार्कअप आ रहा होता है कोर्टों में जो है, ऐसे ही शायद उस मैडम जैसे आयशा मलिक के केस में भी उसको चैरिटी को उन्होंने वो, क्योंकि मसला सारा ये कि कस्टमर को देने पड़ेंगे तो ये जो है ना ये पेनल्टी है, शायद ये भी बात है। उन्होंने कनेक्ट किया था उसको सेक्शन 3 से जो कॉस्ट ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कहा था नहीं तुमने बस ये भी कॉस्ट ऑफ फंड है, तो अब वो ऑब्वियसली अगर वो कॉस्ट ऑफ फंड है तो एज पर फंड होना चाहिए ना। अगर चैरिटी कॉस्ट ऑफ फंड है तो फंड तो उसका है 1 बिलियन, चैरिटी वो दे रहा है 10,000 रुपए, तो अगर कॉस्ट ऑफ फंड है तो एज पर मार्कअप होनी चाहिए, एज पर जो है वो कॉस्ट ऑफ फंड होनी चाहिए, जो प्रॉफिट रेशो है, जो भी स्टेट बैंक का डिफाइंड पॉलिसी रेट है उससे उसको एग्रीगेट होना चाहिए, बट वो तो एक लमसम भी हो सकता है, तो इस लिहाज से ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा आइडिया बट नीड टू कम्युनिकेट। असल में मसला ये है, आप सही फरमा रहे हैं, बीइंग ट्रेनर जब मैं गुजारिश कर रहा होता हूँ दोस्तों से, तो मैं यही कह रहा होता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता जो आपकी पर्सनल लाइफ में अदर देन बैंकिंग नहीं हो रहा होता। जो चीज़ें आप अदर देन बैंकिंग कर रहे होते हैं इस्लामी बैंकिंग में, उनको मुनज़्ज़म अंदाज में हम कर रहे होते हैं। मन्नतें वहाँ आप अलग से कर रहे होते हैं, यहाँ हम आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर रहे होते हैं, तो इस लिहाज से इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग के बड़े बिल्कुल मसले हैं। जैसे आपने फरमाया कि इस्लामी बैंकिंग का केस होता है, डिस्कस मार्कअप हो रहा होता है, तो ऑब्वियसली बैंकिंग के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी सही तरह से बैंकिंग इस्लामी बैंकिंग को समझते नहीं, जो जिन बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जिनका अभी तक भी यही ख्याल है कि यार ये बैंकिंग तो बस कान इधर से पकड़ना उधर से पकड़ने वाली बात है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इसको ट्रू स्पिरिट के साथ समझते हैं। इसके इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ब्रिटिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की 1400-1450 साल की हिस्ट्री है, ब्रिटिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की 200 साल की हिस्ट्री है, और पूरी उसकी एग्जाम्पल सल्तनत उस्मानिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग पूरी तरह से समझते हैं और कुछ लोग पूरी तरह से नहीं समझते, तो अंडरस्टैंडिंग का गैप तो सर है और रहेगा, वक्त के साथ साथ ही इंशाल्लाह ठीक हो। कि बेसिकली अभी हमारे यहाँ जिस तरह इस्लामिक बैंकिंग की अभी जो इम्प्लीमेंटेशन होने लगी, क्योंकि हमारा जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है ना दैट इज़ टोटली डिफरेंट है, और इस्लामिक लॉज हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो हमारे लेजिस्लेटिव सिस्टम है उसके अंदर इस्लामिक जो रूलिंग्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करते हुए देखेंगे, या किस तरह से हम उसको बनाएंगे आगे जाके, क्योंकि कोर्ट्स के जो अभी जो वर्डिक्ट्स आएंगे, क्योंकि जो भी इस्लामिक बैंकिंग होगी हमारी और इसकी ट्रांजेक्शन होंगी, कि कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स आएंगे उसमें अगर रिबा का आंसर आ जाता है, पेनल्टी अगर बैंक के फेवर में लगा दी तो वो तो रिबा में चली जाएगी ना, तो उसको किस तरह से कॉप अप करेंगे जी, तो ये वाला सवाल है। दूसरा सवाल है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है, हमारी कोर्ट्स हैं, सिविल लॉ की कोर्ट्स हैं, वो कितनी प्रिपेयर हैं, क्योंकि अभी से हमें वर्किंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि 2028 में तो हमारा ये पूरा सिस्टम इस्लामी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए भी हम लोग जो है वो लेजिस्लेटिव साइड पे हमारे माशाल्लाह मौजूद साहिबान है या पूरी हमारी जो जुडिशरी है उस पर कितना काम कर रही है, क्योंकि अब आपको ये सारे केसेस इस्लामिक नुक्ता नज़र से देखना है जी। ये दूसरा सवाल है। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा ये था कि जब कोई हमारे पास जो केस आता है वो मैं सर से पूछूंगा कि जब हमारे पास कोई केस आता है तो हम किस तरह से उसको जज करते हैं कि ये जो केस है ये मीडिएशन का केस है या आर्बिट्रेशन का केस है, इसमें डिफ्रेंशिएट किस तरह से करेंगे, क्योंकि कोई भी केस आ रहा है वो तो केस है नॉर्मल, अब उसको जब कोर्ट कहती है कि उसको एक आर्बिट्रेशन में ले जाइए तो दैट वाज आर्बिट्रेशन और मीडिएशन। ये सवाल किया है कि जिसको मैं और ज़्यादा लफ्ज़ों में कहूँ कि कानून मुख्तलिफ है और प्रैक्टिस मुख्तलिफ है, फैसला कैसे होगा।
तो आपको, अगर आपकी नज़र पड़ी हो, जो वफाकी शरई अदालत का जो फैसला है वो तकरीबन उसमें उन्होंने 17 to 18 लॉज एक्ट्स उनको रेफ़र किया है जो अकॉर्डिंग टू द शरिया नहीं है। और स्टेट बैंक में इसके तहत एक कमेटी बनी और उन्होंने और जायज़ा लिया कि और कितने लॉज हैं जो अकॉर्डिंग टू द शरिया नहीं है और वो बैंकिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, बैंकिंग को अट्रैक्ट करते हैं। आई वॉज वन ऑफ मेंबर ऑफ दिस कमेटी और ये तकरीबन 24 to 25 लॉ हैं, इंक्लूडिंग जो है वो कंपनी एक्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, तकरीबन 1.5 साल पहले, ये जो रमज़ान गुजरा, इससे पीछे जो रमज़ान गुजरा था, ये उसकी बात है, उसमें हमने ये किया, इन सारे लॉज का बैठ के जायज़ा लिया, बिकॉज शरिया की टीम थी हमारी और अभी हमने अपने एंगल से शरिया का जायज़ा लिया और ईच एंड एवरी जो लॉ है उसको हमने बैठ के डिस्कस किया, प्रॉपर उसको देखा, कौन सा वर्डिक है जो शरिया से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसके लिए प्रॉपर अदर वर्ड कौन सा होना चाहिए, अपनी सजेशन भी दी, सारी चीज़ें जो हैं वो हमने इन सारे लॉज की करके स्टेट बैंक को दी। सिमिलर एक कमेटी स्टेट बैंक ने बनाई जजेस की, जो लॉयर क्या कहें, जो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, मुझे नहीं पता वो जज साहबान के पास आती है या जो दूसरा साहबान, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका लीगल एंगल देखा और देख के उन्होंने उसको अपने एंड से उस तरह से, जो हमारी सजेशन थी, हो सकता है हम तो शरिया की सजेशन दे रहे थे, हो सकता है जो लीगल की कोई सजेशन ऐसी हो जो हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, उन्होंने उसको बेहतर किया। फिर वो वहाँ से प्रिवेल होके एक टॉप कमेटी में है आजकल, उस पर डे टू डे जो है उसके ईच एंड एवरी क्लॉज पे दोबारा डिस्कशन हो रहा है, होगा। और जब ये चीज़ किसी तरह से करीब हो जाएगी, अभी 28 में भी वक्त है और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले से काम शुरू हो चुका हुआ है, तो ये क्या होगा, फिर ये लेजिस्लेशन के थ्रू जो है इसका पूरा एक बिल आएगा और उस बिल के ज़रिए जो है ये पास होगा इंशाल्लाह। तो एक तो ये, मीनवाइल आज के दिन में या पिछले 10 साल से 15 साल से क्या कर रहे हैं हम, आज भी तो केसेस जा रहे हैं लिटिगेशन में, तो वो मैंने अपनी कुछ परेशानियां बताई हैं कि कुछ मसाइल में हमें जो है वो ऐसी मसला आ जाता है कि कोर्ट ने एक फैसला दे दिया होता है जो हमें शरिया एंगल से उसकी कोई तजवीज़ देखनी पड़ती है। अच्छा, एक और दूसरा ये है कि कोर्ट्स को तहफ़्फ़ुज़ है, हमारा जो आइन है, स्टेट बैंक, मुझे याद है एग्जैक्ट पढ़ रहा है कि स्टेट बैंक ने एक छोटा सा पोर्शन इस्लामी बैंकिंग के हवाले से उसका पार्ट बनवाया था, जो स्टेट बैंक की जितनी भी रेगुलेशन है वहाँ पे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मुझे याद नहीं है, मैं एक स्टेट बैंक की कोर्स में था तो उन्होंने हमें दिखाया भी था, तो उन्होंने उसका वो एक ओवरऑल उसका पार्ट बना दिया है और उसमें ये बात मैंने खुद पढ़ी है कि जो भी इस्लामी बैंकिंग के एग्रीमेंट्स होंगे या जो भी इस्लामी बैंकिंग में अवेलेबल जो शरिया बोर्ड्स होते हैं उनके जो डिसीजन होंगे दैट वुड बी बाइंडिंग और फैसला शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट गाइडलाइंस। तो ये यहाँ से आज हम कवर हो रहे हैं और इस तरह से हम लेजिस्लेशन अपनी जो आर्बिट्रेशन है या जो भी लिटिगेशन है उसको हम मैच करके फिर हम जब अच्छा हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है क्योंकि बोथ साइड्स पे जो है वो डेवलपमेंट कंटिन्यू चल रही है, तो क्या होता है बस औकात हम शरिया एंगल देख के बता देते हैं, कोर्ट से एक और चीज़ आ जाती है, तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, फिर हम दोबारा वो केस शरिया बोर्ड के पास प्रेजेंट होता है, शरिया बोर्ड उसको फिर देखता है कि यार ये क्या है, क्या सिलसिला है, किस तरह से उसको बिठाएं, फिर हम कस्टमर के साथ बैठते हैं। तो अच्छा, फिर हमें एक और भी चीज़ देखने की ज़रूरत होती है, इस्लाम में जो रेम्युनरेटिव कोई चीज़ ली जा रही होती है किसी से अगेंस्ट दी, कोई क्लेम कोई लिया जा रहा होता है, उसकी दो सूरतें होती हैं, या तो वो सुलह के तौर पे लिया जा रहा होता है या वो प्रॉपर उसका रेम्युनरेशन लिया जा रहा होता है। अगर सुलह के तौर पे लिया जा रहा होता है तो वो भी एडजस्टेबल होता है किसी न किसी तरह, लेकिन अगर एक प्रॉपर बदल लिया जा रहा है, रेम्युनरेशन लिया जा रहा होता है, उस पर अगर हम फंसते हैं तो फिर हम कस्टमर को बिठाते हैं कि यार बैंक ने ये डिसीजन दिया है बट शरिया एंगल से ये ठीक नहीं है, आप इस पर विड्रॉ कर लें, या बैंक अपनी कोई चीज़ विड्रॉ कर लेता है, तो इस तरह से उसको रिजॉल्व कराहियत के मामले के साथ कराहियत नहीं, मैं ये कहूँगा कि हम उस बैंक के जो कोर्ट का डिसीजन होता है उसको फिर सुलह के तौर पे उसको रिजॉल्व करते हैं। सुलह सर ये आखिरी क्वेश्चन, आर्बिट्रेशन जो है ना एक एक्ट है और उसके तहत जो है वो एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक कम से कम एक आर्बिट्रेटर होता है या 2 आर्बिट्रेटर होते हैं और फिर एक अंपायर होता है। और वो जो है मैंने जैसे पहले कहा था कि जब ये आर्बिट्रेशन का कानून जब बना था तो जो लीगल फिलोसोफर थे वो बड़े खुश थे कि जी इससे हम लिटिगेशन को कर्टेल करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हुआ उससे मुख्तलिफ, लिटिगेशन बढ़ गई
इसलिए कि एक ही आर्बिट्रेशन में कई कई एप्लीकेशनें जाती हैं बार बार कोर्टों में। वकीलों ने बहुत कमाया इसमें, जो ख्याल था कि नहीं होगा। अब मामला ये है कि मीडिएशन जो है वो बिल्कुल आर्बिट्रेशन से अलग चीज़ है। कोर्टें जब एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन की क्लॉज मौजूद होती है तो फिर कोर्टें जो हैं वो उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहता, वो फिर आर्बिट्रेशन में ही उन्हें भेजना है। और जहाँ ये क्लॉज ना हो या मीडिएशन की क्लॉज मौजूद हो, ये आर्बिट्रेशन मिसिंग हो, तो फिर तो बड़े आराम से भेज सकते हैं। केस को देखा जाता है कि जी ये जो है इस केस में बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें अरे जजेस क्योंकि वो केसेस देखते देखते उनको एक एक्सपर्टीज डेवलप हो जाती है, फाइल देख के वो अंदाज़ा करते हैं कि ये मामला जो है मीडिएशन से रिजॉल्व हो सकता है, तो वो उसमें मीडिएशन की एफर्ट करते हैं। और जैसे अभी बात हो रही थी, मैं लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल में हूँ, यहाँ पे मैंने बेशुमार केसेस जो हैं वो थ्रू मीडिएशन रिजॉल्व किए हैं, तो हो रहे हैं वहाँ पे। तो वो जो है मीडिएशन जब देखा जाता है कि जी ये मैटर जो है ये थ्रू मीडिएशन रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन मीडिएशन के लिए सच किसी लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत भी नहीं है। वो कि मौजूदा बहुत अच्छा ना भी हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी ये हो सकता है। आर्बिट्रेशन में जब एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन की क्लॉज मौजूद हो फिर कोई और ऑप्शन बचता नहीं है, फिर आर्बिट्रेशन में ही जाना है। कराना है कि ये मेडिएशन के अंदर आप जल्दी से हो जाएगा और आपकी रिश्तेदारी ख़राब नहीं होगी। यानी रिश्तेदारी मीन्स कस्टमर और बैंकर की रिश्तेदारी ख़राब नहीं होगी। आइंदा वो लोन लेने आप ही के पास आएगा और आप भी उसको लोन देंगे, तो रिश्तेदारी बरकरार रहेगी अगर मेडिएशन हो जाए। बस वो रियलाइजेशन करवानी है और फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस थोड़ी सी बतानी है, तो वो मेडिएशन पे आ सकता है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इसाक साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म और फोरम फ्राहम किया। और जैसे डॉक्टर अवैस साहब ने और शाहिद शफीक साहब ने हाईलाइट किया कि कुछ चीज़ों को हमें एजुकेट करना चाहिए फोरम पे जाके या रेलेवेंट जहाँ पे हमें कुछ मिलती हैं, रिलीफ मिलता है चैरिटी के हवाले से। इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग की बात की डॉक्टर अवैस साहब ने, तो मेरी सजेशन है, इट्स नॉट ए क्वेश्चन, सजेशन है कि जिस तरह सर कर रहे हैं, सेंट जुडिशल अकेडमी को हेड कर रहे हैं और इसाक साहब एक अपने इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहे हैं, तो ये थोड़ा हमारी कम्युनिकेशन गैप कम होना चाहिए। सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स बढ़नी चाहिए कि लॉयर्स जो हैं उनको फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का आइडिया नहीं है, जो बैंकर्स हैं उनको लॉ का आइडिया नहीं है, और जजेस साहबान को दोनों चीज़ों का आइडिया बहुत अच्छा होगा, आई अंडरस्टैंड दैट। बट वहाँ पे कुछ गैप्स हैं प्रैक्टिसेस के। प्रैक्टिस क्या है, कस्टमर की प्रैक्टिस क्या है, वो आपका जो लिटिगेटर है या डिफॉल्टर किस एंगल से आ रहा है, और बैंक क्या अपने एग्रीमेंट्स को कैसे इन्फोर्स कराना चाह रहा है। तो मेरी सजेशन है कि ये फोरम जो है या जुडिशल अकेडमी से कुछ जजेस साहबान हों, कुछ बैंकिंग के एक्सपर्ट हों और कुछ लॉयर्स हों, तो एक मे बी सोशल फोरम बन जाए, इससे कम्युनिकेशन बढ़नी चाहिए सो दैट कि सबकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो और एक फ्रिक्वेंसी से हमारे ये सेमिनार्स हो, जिसमें सजेशन। थैंक यू। स्पीचेस की हैं, बड़ी मुफीद स्पीच की है जिससे हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आखिर में मैं बस आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। हम एक मीडिएशन स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम करा रहे हैं कि जिससे मीडिएटर्स जो हैं हमारे क्रिएट होंगे और मीडिएटर्स बनेंगे, वो एक्रीडेटेड मीडिएटर्स होंगे। और ये प्रोग्राम बाकायदा इंटरनेशनल मीडिएशन इंस्टीट्यूट जो है वहाँ के ट्रेनर्स आ रहे हैं और मीडिएटर्स की ट्रेनिंग देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मीडिएटर्स ट्रेनिंग अगर आप यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं तो इसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं, सिर्फ 18 सीटें होती हैं, इससे ज़्यादा इसमें हम ले नहीं सकते पार्टिसिपेंट को। और मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा एक रजिस्ट्रेशन हो भी चुकी हैं, तो ये इसमें लिमिटेशन सीट्स होंगी। और इस बारे में जैसे जावेद किरियो साहब ने पहले ही बता दिया कि ये जो अगर आप ट्रेनिंग लेने चाहते हैं और ये इंटरनेशनल मीडिएशन स्किल ट्रेनिंग लेंगे और बाहर किसी मुल्क में आप ट्रैवल करते हैं जाते हैं तो तकरीबन आपका 2.5 मिलियन आपका एक्सपेंस आता है।
यही चीज़ हम आपको कराची में यहीं पे अवेलेबिलिटी दे रहे हैं, ट्रेनर्स को बाहर से यहाँ बुलवा रहे हैं और वो यहाँ आके अच्छे से आपको ट्रेनिंग देंगे, तो आपको एक एक्रेडिटेड मीडिएटर बन जाएंगे और इंटरनेशनली आप रिकॉग्नाइज होंगे, कहीं पे भी आप जाएंगे तो एज अ मीडिएटर कहलाएंगे। तो आप सब लोगों को हमने एक ब्रोशर्स भी दिए हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भी दिए हैं, आप इसको कंसीडर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप यहीं पे तकरीबन इसकी 3.5 लाख फ़ीस है, तो कहाँ 2.5 मिलियन 20 से 25 लाख और ये 3.5 लाख रुपए, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस है और यहीं बैठे बैठे सब टाइम की भी आपको आने जाने से भी आप महफूज हैं। तो यहाँ आप अगर चाहेंगे तो ये मीडिएशन की ट्रेनिंग ले सकते हैं और इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़।